Hello, hello, hello. Welcome back to Almighty Blues FC, your fan channel for all to see. और यार पता ही है क्या हो रहा है Blues के साथ अभी. We are like lying lowly 10th in the table, but it's just not Blues. You all know it's a fan channel for all to see. और मेरा जो सेकंड क्लब है मिलान वो तो भाई और भी बेकार कर रहा है the last few weeks. तो भाई एक अच्छा मौका है as a neutral to speak something which is pending for a long while. I know Dhenuka हमने बहुत सारे बात किए थे. Welcome back to Almighty Blues FC. Firstly, how are you doing? Hi, thanks for having me again, Ankit. I'm Always, good. I'm always. good. So yeah, as in चल रहा है. by chance, just in case you don't know, so the Dhenuka kind of, is the president of Bombay PENIA. By the way, बार मैं भूल जाता हूँ भाई जीतू भाई को बुलाना, लेकिन big up to him as well, absolutely. Yes. लेकिन भाई there is a lot to be discussed. Dhenuka, I know the World Cup का जो होता है ना, after effects were still there. Is it also in Real Madrid? I know that, by the way, Barca भी बात करना है. We are going to expect Ziba in a few minutes. But are Real Madrid having problems that needs to be addressed, Dhenuka, for you in general? Or do you think here maybe I'm reading too much because of the World Cup after effects? No. ये प्रॉब्लम पहले से ही मतलब मुझे लग रहा था कि see it's natural, right? It's not just Real Madrid. Every team, if you see, is going through a bit of a slump. मतलब वो जो एक rhythm था World Cup के पहले, it's not the same, and all the teams are kind of settling in, and it's normal because the World Cup is an exhausting. It's a huge event, right? So उसके after effects तो होने थे. मतलब my grudge is that we did not plan well enough for this, I feel, in terms of squad depth. And again, this is also another thing that plagues almost all teams, right? Because सभी teams के पास यही है कि कुछ key players अगर निकाल दो key positions में से, then everybody starts floundering a little bit, with the exception of maybe Man City, who have the best depth, bench strength, in my opinion. Yeah, that's always मतलब objective तो वही होता है for any club to हाँ. kind of go there. Plus at some point also Real Madrid पर ज़्यादा focus, that it's always there, because let's be honest, it is the biggest club in the world. Whether Barca fans or me as a Chelsea fan, Manchester United fans will say it like it's one of them for sure. I know यहाँ पर मैंने डाला है who rules Spain. As things stand, technically you are the defending champ, so pressure will be even more. I know बहुत सारा transition चल रहा है when it comes to certain clubs जिसका मैंने नाम लिया, बार्सा, मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी एंड अदर्स. लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक रियल मैड्रिड जो साइकिल है, मतलब आई फील, मतलब देनो का आई डोंट रॉन्ग. बाय द वे, जो भी लोग जुड़े हैं, अगेन आप लोग भी साथ साथ कमेंट देते रहिए. एवरी क्वेश्चन इज फॉर देनुका, इज आल्सो फॉर द चैट, तो बिकॉज़ यू गाइस आर आल्सो माय को-पैनल, एब्सोल्युटली, क्योंकि मुझे चाहिए बहुत न्यूट्रल ओपिनियन एज वेल एज रियल मैड्रिड सपोर्टर्स टेलिंग मी. सो transition, although smooth transition jo hai na, I saw that it's happened over the years. But now obviously the biggest question is, and we'll come to the Copa del Rey matches and La Liga in particular, lekin I think jo midfield conundrum hai of Real Madrid. I know Dhenuka, you're a huge fan of Modric, there's no two ways about it, lekin at the same time Kroos or Modric at the same time not playing last weekend, was it telling ki they didn't start the game? I think against Bilbao was it, I know you got the win, he scored the goal, but कहीं ना कहीं was it telling? I know Ancelotti has come and said about it that nahi, they are still pillars or etc. Or you see nahi, it's probably the right time to change them right now. No, I think what Ancelotti did was 100% justified, and there are reasons other than form where you bench your players, and I think and there are and I think he did that smartly. हमेशा हमारी शिकायत ये रहती है कि Carlo does not do that. He runs his players to the ground. वो जो starting 11 prefer करते हैं, there is always this complaint that he runs these people to the ground despite having options in a Kamavinga or ठीक है Chouameni is injured. But he doesn't do that. So for once, when he did do that, I think it was 100% justified, completely justified. And I know for a fact that with Modric, he was not playing his best game at all after the World Cup, and you could see that he was exhausted. He did not get time to recover, and sometimes that is important. Because you could see that even after 2018, there was this slump in form in Modric's case, because again the World Cup, taking Croatia to the finals, and even here taking Croatia all the way, at least like not to the finals but to the semis, and then playing that third place match.
it is a huge ask. And if you see the way they play also, it is very intensive, and Modric is running from like at both ends for like 120 minutes. इनको तो 90 minutes भी नहीं बोल सकते, क्रोएशिया तो मतलब हर गेम 120 मिनट लेकर जाती है. तो Right. I think it was very justified that Carlo sort of started Ceballos. And मुझे यहाँ पे ना Ceballos के बारे में बोलना है, because I know that I'm one of the few people who actually used to, even on other channels, etc., as a commenter, I know that there were a lot of Madridistas who would be like, बेच दो यार Ceballos को, क्यों रखा है, is not Real Madrid quality. And मुझे हमेशा यही लगता है with Ceballos, he is one of those, the Spain, he's a Spanish player, and he's also a very good sort of backup to have, because the matches he has started, he's not had bad matches. So Mhm. he's not started, sorry. The matches he's come on, he has looked good. Like Even in he's the done a Champions job. League, Would that be he right to does say his that job. he's And yeah. he is sometimes, I think, creatively he can offer. Like he's the kind of player you need in the middle at that time. And he fits well, and he does the job, and he has done it even in the Champions League last year ke run mein dekho to. So, and yeah, currently again, I'm very happy that he got a chance to prove himself, and he has been playing really well. And this is why you need a player like Ceballos, right? When your Modric is not doing well, at least for this season, when your Modric is exhausted, you've run him to the ground, and tumhare baki players are also, Kroos is also like, you can see that he's not able to sort of run the entire 90 minutes. He is slowing down. So when you know you have these problems, you need a player like Ceballos to come back, and because he's not going to be Mhm. a salary drain, unlike anyone you try to sign now. So ये Correct. players भी चाहिए एक squad में, and that's why I was बिल्कुल. always in favor of having a Ceballos, क्योंकि Ceballos, and you know, to a certain extent, I think even Asensio, because even though he may not be the player you expected him to be, he's still a good backup to have. He's a good option to have, and anybody who's not a salary drain, I think at this point should be retained. ये मेरा opinion है, but I know there are नहीं, many नहीं, I people who agree with you 100%. यार बहुत बार हम as fans, I know Dhenuka and me kind of go nostalgic, and बहुत सारा हमने discuss किया वो lot of streams. The fact is कहीं ना कहीं to win tournaments, to win multiple tournaments, जो जितने football हो रही है, you need a squad plus 5 yeah, substitution rules etc. yes, Football has changed जो था, और already हमें squad चाहिए था, plus I think they need a squad, and I think people like, I think Ceballos can be basically in a way Nacho of जो defense है. Ceballos can be in midfield in a different sense. लेकिन again, for me, having seen Ceballos in Arsenal, मुझे थोड़ा सा हमेशा थोड़ा, you can see the smile on my face, because that was the difference Ceballos, but I see जो कर रहा है, I think he's yes, doing a job, he's been doing exactly what's been asked of him. लेकिन वही है, मतलब यहाँ पर just by Bellingham won't help. सुमिता आप बोल रहे हैं, you need one more backup option. अब एक for चीज मैं sure. बोलना चाहूँगा यहाँ पर, as much as Kamavinga is basically come in, and I know we'll be talking about the Copa del Rey, starting 11 etc. expected. Atletico Madrid भी थोड़ा बात करेंगे, बारसा पर भी आएंगे जब जी भाई जुड़ेंगे, but in terms of Bellingham, now there is obviously एक हो सकता है bidding war हो, and you know that bidding war होगा, तो I feel personally Real Madrid के पास, मतलब they will not have competition. I don't think Liverpool can even compete if it's a bidding war. लेकिन the fact is now Bellingham, he has connections with Henderson, the English national side, and so on and so forth. Like I Steven know, Gerrard is doing literally very zero, right? So Rose, literally every day, some of the other news is coming with some corrections coming. Aaj I think Sky Italia ke flop. basically, a Hmm. person has also mentioned that nahi, it looks like right now Liverpool are the front runners, and then comes Real Madrid. कल दूसरा आया था. कल को ये भी, I won't be surprised if Todd Burley comes and does his thing in the summer. That's a different thing. वो एक wishful thinking वाली चीज है, but we are interested. So what is the backup plan, by the way? Like firstly him, and then pretty sure यहाँ पर as in only one signing will not do, as Sumita was saying. I agree with him 100% that Yes. are you having कि कोई ना कोई option say maybe in your B team, maybe people that you're seeing, because again two people हाँ. losing, मुझे अभी भी लगता है as in pretty sure one of them will extend, right? I cannot see Kroos and Modric going together, but still you want two midfielders, right? Yeah, actually, all sort of hell broke loose after one particular. Good evening. All hell broke loose after this one random report that said, keep basically contract extensions, renewals have been offered to players, and
सभी के लिए मतलब the process has started and what not. So there were reports coming out कि Asensio को क्या offer हुआ है, and then Ceballos को, and everyone, right? Modric, Kroos, Benzema. So what happened is, no, Benzema already signed an extension, I think. Sorry. So when the reports came out, what happened is this one report said a very, what did they say? Like there's this kind of not shocking, that's not the word I'm looking for, like a heartbreaking, that was the word, a heartbreaking news regarding the renewal of one of the one of the greats or one of the mainstays of the team, right? So ऐसे होने पे क्या हुआ ना, and then one other report said that person they're talking about is Modric. So everyone thought that it was Kroos, because Kroos has been kind of like he's been throwing hints, and there has been this talk all the time. There were some reports that in the dressing room he's kind of hinting at the fact that he's going to leave. The dressing room kind of senses it लेकिन that वो वर्ल्ड कप ही नहीं खेला है, प्लस द फैक्ट दैट मतलब इट्स yeah. वेरी स्ट्रेंज ना, सो बीइंग सो लॉन्ग इन रियल मैड्रिड, आई एम जस्ट वंडरिंग व्हाई, एज इन व्हाट डू यू थिंक So the स्टार्टेड thing दैट? is, so he wants to retire. He's definitely not going anywhere else. He wants to अच्छा, retire, and he wants to retire on a high. And he says that ओके, he can't keep up, and he's exhausted by the end of the day, and he wants to retire on a high because he doesn't want to be on the bench, and he doesn't want to be a liability to the team. कि अरे यार ये छोड़ के जा भी नहीं रहा है or whatever, which is the reason why he only signed a 1-year extension. Even the last time when he was offered a 2-year contract, he said no, and he said, let's see how this season goes and then I'll see. So he has been राइट, dropping hints, um, and yeah, so the first half of the season, especially before the World Cup, Kroos was, I would say, the most impressive Real Madrid player, because what he used to, you could see that sometimes like he wouldn't do like the defensive work, but this time around, even that was not the case. He was putting in defensive work. He was like, I would say, the most impressive player in the Real Madrid squad until the World Cup, what we saw. So that was the only hope that maybe that'll try and that will try and sort of persuade him to stay on, because especially क्योंकि if there are reinforcements and sign कर लिया हमने और midfielders को, and he has that kind of rotation होते रहा, so then he doesn't राइट, have to shoulder all that burden, and maybe if he plays a relaxed sort of season this time around, it'll give him motivation to stay. But these hints have been coming in like very steadily. So everybody expected it to be Kroos except for that one random report that said Modric. इसलिए like सबके सब ऐसे मतलब एंटनी खड़े हो गए सबके कि oh no, it's Modric, and then हाँ, this because whole thing he's came I about think that मतलब ज़्यादा important, as much as Cruz has been brilliant, he's been I think more because important to that Real came Madrid. out of left field. I was not at all expecting Modric to not renew, because he would always say that he sees himself continuing at Real Madrid. He wants to retire at Real Madrid, and that he sees like he's good enough for a couple of seasons at the very least. So that came out of left field for me. Ki why is this person saying, a very reliable source said it's Modric? So anyway, I तो वो understand. that is where it came from. But मुझे ऐसा लगता है एक जन ने किसी ने ना कास्टिया के बारे में कुछ तो मतलब लिखा था, and that is a very good point. Our Yeah, B let me team. take it. अच्छा, So बाय द वे क्विकली यहाँ पर शाउट आउट देना चाहता हूँ भाई टू अ पैनल अगेन, बॉम्बे पे या बिग अप, लेकिन जी भाई वेलकम टू द स्ट्रीम भाई, आई होप यू आर वेल, ग्रेट टू ऑलवेज हैव यू, एंड ऑफ कोर्स इट्स अ ग्रेट पैनल भाई, एवरीवन वाचिंग, करीबन 150 लोग देख रहे हैं, होपफुली एवरीवन हैज हिट दैट लाइक बटन और कंसीडर सब्सक्राइबिंग एज वेल, इट्स अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी, वी कवर all content inspired by Z भाई as well as Dhenuka, because we have a lot of conversations always, and I love the conversations यहाँ पर, thanks. but Zebhai, I think we were just discussing on the transfers to begin with, because we all know that the midfield conundrum of Real Madrid, or of course with Liverpool trying Bellingham etc. उस पर बात कर रहे थे. But coming to the Copa del Rey, मतलब again Zebhai, no surprises there, Barca fan. But at the end of the day, by La Liga में Copa del Rey, मतलब would you say somewhere down the line that the cup competitions in La Liga have gained prominence? मतलब अभी तक पता नहीं क्यों इंडिया में टेलीकास्ट नहीं होता यार, मतलब उसका कुछ करा दो भाई जी भाई Oh सबसे God, पहले तो. that is the biggest pain. That's why I'm Watching asking जी this, भाई, एक you तो must ऐसे नहीं है contact, do कि something bro, it's we not need to even at have that on 7:30 TV. p.m. एक तो मतलब आधे रात को कहाँ से ढूंढो, and then ढूंढ miss के out, exactly. the stream. हाँ.
sorry, जी go ahead. 2014 का टाइम था. आई वाज इन कॉलेज में, मेरिट में अपनी बीटेक कर रहा था. तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोपा डेल रे वाज टेलीकास्टेड एंड टीवी पे आ रहा था. एंड इट वाज अराउंड 2:30 a.m. इन द मॉर्निंग. सो पूरे Hmm. हॉस्टल में खाली अकेले, आई यूज्ड टू गो टेक द रिमोट्स फ्रॉम माय सीनियर. टाटा स्काई का वो कार्ड लेके जाऊं, कॉमन रूम में मैं कार्ड लगाऊं, अकेले बैठ के 2:30 बजे रात में मैं मैच देखूं, 4:30-5 बजे मैं फ्री होता था. तो आई हैव सीन दोस डेज जहाँ पे Yeah. कोपा डेल रे के लिए आई हैव बीन क्रेजी. एंड आई ऑलवेज थॉट ऑफ इट लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट बिकॉज वी वर वन ऑफ द फेवरेट्स एवरी टाइम व्हेन वी प्ले. तो Yeah. अपन को तो भाई सारी टाइटल्स चाहिए चाहिए. सो वी गो आउट challenging for all of them. And is Barbie, like if you look at the fixtures, both Madrid and Barcelona have got some tricky tie. Madrid will obviously play against Atletico, and Barca will be up against one of the most informed teams in Yeah. Spain, Real Yeah. Sociedad. Yeah, तो आपकी वीडियो देखी थी आज बाय द वे यार, डैम गुड बाय द वे, okay, पीपल डू चेक इट आउट. thank you. You need to know sometimes, Yeah, we kind of are only in those big clubs and big players bhai, but at some point you need to need some content, or big up to Z bhai for that. yeah, लेकिन thank you. talking about this Atletico Madrid यार, Real Madrid के पास पहले तो Atletico Madrid kind of mixed try even after the World Cup, and lot of talks की Enrique coming Z bhai there. But firstly, how will it feel by chance अगर वो हो जाए कि Enrique going to Atletico Madrid, Nah, a Barca come on, legend. Ankit bhai, क्या बात कर रहे हो आप? आप सिमियोने बॉल से, आप एक हराम बॉल से, if I will say, आप एनरिके बॉल पे शिफ्ट करोगे. I mean obviously this is तो something करना what है they ना वो, need. And इसलिए तो Atletico Madrid नहीं यही तो चल बात रही. है. आप देखो बोर्ड की जहां तक बात है ना, दे लव डिएगो सिमियोने. ठीक है, दे लव हिम फॉर व्हाट ही हैज डन इन द पास्ट डिकेड. दे रिस्पेक्ट हिम फॉर एवरीथिंग दैट ही हैज डन. उस बार्सिलोना और लियो में, बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के वो पीक सीजन्स में भी दे हैव डिड अ वेरी गुड जॉब, वन द लीग्स एज वेल, चैंपियंस लीग फाइनल तक पहुंचे एंड एवरीथिंग. तो ही हैज लिटरली टर्न्ड अराउंड देयर फॉर्च्यून्स. बट अभी ऐसा लगता है ना मुझे थोड़ा सा, इवन द बोर्ड इज थिंकिंग यार, व्हाट इफ वी are much more adventurous, probably thought a risk lay, and probably try some other managers, and hopefully that could work. But Lucho nahi, Pocho Lalo, that would be fine, but Lucho ko kinara chhod do. I don't want to see him anywhere near Madrid. Interesting. Dhenuka, back to you. And then, so, matlab, at least Diego out is a no-brainer. Like, I know he earns one of the most expensive managers there. Like in Atletico Madrid, I think even Real Madrid के साथ में last 13 matches में they've beaten Real only twice or something like that in all competitions. And Real last 4 matches at home, it's just a Santiago Bernabeu कल. तो pretty sure यहाँ पर you haven't conceded even a single goal in the last 4 matches. So is it वो ये Champions League matches जो हुए थे in the past, that kind of aura is still there between Real Madrid and Atletico Madrid? What do you see in this match this time? Because Real Madrid are not, I would say, in ideal form as well, right? Yeah, I would have been a little more worried after that Super Copa, to be honest. After the Clasico, if you had asked me, I would have been a little more worried. But not just because it was Barca, it was the way we were playing continuously at that time. Even before, even before that, it was a pattern. You could clearly see that we have become like 100% predictable. Like we could predict, right? And we are like, "Arey yaar," like every team has figured it out now. Like what you need to do, how you need to block Real from scoring, and that was it. And that was appalling. So and then Carlo not willing to try something new or trying fresh legs or trying like changing up his tactics. कुछ नहीं हो रहा था. But at least now he is trying differently. He's trying different things. It is a little less worrying, not because of the fixtures, but because of the change in like pattern. Like at least we are playing like we know how to play football. वरना बीच में तो ऐसे लग रहा था कि यार पास भी करना भूल गए हो क्या तुम लोग, मतलब क्या, what are you even doing? It was that bad. And then this is not an overreaction, trust me. Lekin for Real Madrid, Spot I on, would say spot one on. thing, Dhenuka, that I think last 7 matches they've been playing away. So kahin na kahin, I think you have to take that into consideration. But still, even at Sure. home, I think clean sheets nahi rakh rahe. So what do you think? Matlab, don't tell me Clean Rudiger is sheets, the reason. क्लीन शीट्स रियल मैड्रिड हिस्टोरिकली मतलब वो बहुत ही कम होता है. अगर लास्ट सीजन देखो तो वी हैड कोर्तवा जो मतलब he was in phenomenal form, right? Phenomenal form. But there's only Right. so much even he can do. He did not win the Zamora. Bono did because he doesn't have as many clean sheets, and that's down to our defense. And historically, हमारे यहाँ सबको आगे ही भागना है. Like it is very difficult to. We don't have the kind of defense that other teams. It's not the kind of football we play, right? तो वो बहुत मुश्किल है. Real Madrid and clean sheets has never been a very happy story. Okay, and Yeah. and the philosophy is like as long as we are winning, it's fine. Like हमारे extra goals हम लोग जो करेंगे we'll win.
That has been the thing, right? Like you score 3, we score 4 or 5. But that said, it is worrying because when you could see that when Mendy is not in form and when Carvajal is injured and we don't have like a good right back, and Carlo is trying like weird tactics and it's just not working, and the midfield is a complete mess because everybody is trying to play deeper, so there is no cohesion in the team. And just even putting Nacho there seems to have worked because Nacho honestly has been in sparkling form this season. Right. I'm talking about this season. So honestly, there was no reason why you shouldn't have started him in the first place. But theek hai, chalo, you still have some kind of a year. And when Alaba and Militao are there, you would not want to wreck a CB pairing that's working really well. So that is completely understood. But when you understand that Rudiger, it's not working with Rudiger, and then when your right is really suffering, I think it should have been. But I'm glad that he did try Nacho there, and it seemed to work. So at least now there is hope. I would have been very, very worried about this Atletico fixture. I'm not even joking. Had we not been making those changes, and ठीक है अभी I was also a little upset that he didn't try. See, the Copa del Rey, the initial games are the games where we try our backup players, right, our bench out. And यहाँ it is clear कि तुम्हें bench में trust नहीं है क्योंकि Vallejo, Hazard, sorry, but Vallejo and starters नहीं हैं, these are not starters नहीं anything. है. And the thing is, इन लोगों के यहाँ पे Mariano का contract expire हो रहा है. He's on his way out. Vallejo is, I don't think they're extending Vallejo, and what's the other one? Odriozola. Odriozola, Ceballos. So of the lot, only Ceballos merits like that, merits faith because he has never put in a bad game until any time he has been called. Like we already talked about that, right? But बाकी के देखो तो तुम अभी ये Odriozola को and rightfully like किस basis पे खिलाओगे Odriozola को, Vallejo को, Mariano को, etc. So a good thing at that time would have been to promote our Castilla players, especially when you're playing Copa del Rey में, when you're playing a team that plays at हमारा B level भी नहीं, C level पे. You try your players out at that time, right? What is the point of getting that Vinicius Tobias RB at after the 80th minute? वो 10 minute में क्या करने वाला है? What is the point of getting your Arribas and these people after the 80th minute? And these are the games you have to play them. It's a team that 99% of the people can't even pronounce because it is like उतना छोटा team है वो. So this, and like start Loon in these games because Copa del Rey is where you will, and especially the initial games. Now you can't do that, right? Because you're playing Atletico Madrid. So अभी तो वो हो जाएगा ना कि you can't play them. Plus Dhenuka, like Zee just said it, Barca are technically मैं बोल नहीं रहा for the sake of it, लेकिन 32 times champions रहे, if I'm not wrong, the highest in Copa del Rey. Real Madrid, it's been 8 years since you have done, as in after the Bale Golazo, we've never उसके बाद ट्रॉफी गिरा दी बस यही हो रहा है. किसी ने तो लिखा था, it was so funny. Someone put a comment saying that we are cursed since the moment Ramos dropped that trophy from the bus. So it is our trophy to lose, and हमेशा से ही मतलब ऐसे non-descript teams के साथ भी हम लोग हारे हैं. And कभी मुझे लगता है कि it is lack of motivation, and वो भी कहीं होता है कि you would not play a CL game like this. And I have a bone to pick with that also. मतलब Super Copa में जो खेले हम लोग. But anyway, I'm just glad you didn't call me after that Clasico. Super Copa में बहुत अच्छा खेला. Thankfully Ankit ने बुलाया ना after that game, वरना it would have been one बड़ा rant. नहीं actually plan वही था, लेकिन मतलब नहीं यार कुछ ज्यादा हो जाएगा. मतलब आजकल थोड़ा मतलब last year भी I remember El Clasico के बाद हमने थोड़ा ठीक है, मतलब उसके बाद के जो ये 2 matches खेले, I'm a little settled because of the reasons I mentioned. But yeah, but that's my thing. Promote the Castilla players. When are you going to make them play otherwise? और फिर यही होगा ना, वहाँ पे एक Manchester United में वहाँ पे चिदम्बर जो बोल रहे हैं ना Dhenuka, I think this has a point. कहीं ना कहीं Valverde, maybe it's the World Cup. I feel कहीं ना कहीं he is not having that spark. I know it's easy to say, मतलब जो मतलब extraordinary form में था भाई, वो turbo Timo जब बोलते थे, he was actually turbo Valverde जो था beginning part of the season. He has kind of lost. और I think Rodrigo, Asensio थोड़ा rotate हुए. Everyone, कोई कोर्तुआ को छोड़ के, I think you can say the same for everyone. Yeah.
I don't think anybody has been performing at the level we have been expecting them to perform, or um, kind of come up with that kind of last दो game में थोड़ा वो motivation, and you can see the kind of passion a little bit, the aggression, the passion. But I can say this for everyone, and obviously it pulls down the game when you have like Benzema missing chances, when you have and let me make this very clear. Like, I love Vinicius, uh, but it's not, and he is probably the one who has been the best out of this lot that is playing right now. But even he is not up to, and I don't blame him. Okay, I should say that also, because Yeah. वो आजकल it's not 1v1 जैसे we always say, it has now become 3v1 in his case. So I'm not even blaming him. But nobody is in that kind of sparkling form, like especially compared to last season. Yeah, where everything, like Benzema didn't have an off touch. Vinicius didn't have like the first half of the season. Vinicius was like See, he could that's where you go need a there and squad, right? क्योंकि someone who's out of form you exactly. need to replace, and Valverde was in कब तक वही sparkling करते form. रहेगी Real Madrid? I mean, Rodrigo, all I of them. अभी नहीं है. अभी सबके सब they are all a little. They're playing a notch yeah. below what we expect them to play. So See, I Okay, wouldn't put I it know just Dhenuka on that Valverde. you are But short on time. yes, So भाई until सब my लोग जो boss भी आए messages, एक तो I'm holding out. हाँ exactly वही even मतलब VAR is I not would not want performing to well. do that. So so big up to Shankar Dhenuka bhai, and Bombay Pinia of course. भाई सब लोग Bombay Pinia का handle is there in the description. पहले लाइन में आपको मिल सकता है. जी भाई के channels, both the channels are linked, as well as Dhenuka's Instagram as well as Bombay Pinia. Dhenuka, thanks. मतलब हम Thank लोग तो you. लंबा चलने वाले. If you can come I on know. later on, come back. Listen, my boss literally messaged. अच्छा ठीक है. Okay चलो I have चलो to rush now. चलो. See you Thank you so Dhenuka. See you much, soon. guys. I wish I could चलो. stay. great to hear. Yeah, Great me to too. hear. No worries on that. So we'll Likewise. continue. Ziba is here, and Bye, we'll guys. continue Yeah, the have chat. Bye fun. bye bye. Yeah. Thank you. Thanks for coming on as always. So Ziba will continue here. So I know यार boy अंकित बहुत भाई बहुत एक बारसा मिनट वी fan. विल कंटिन्यू बट एक बस अंकल भाई का कमेंट ले लो यार यहाँ पे वीआर इज नॉट परफॉर्मिंग वेल मैं देखा था वो भाई. we are not performing well is actually the यार reality that of was of it, nice but cannot help it. shit man But Ziba, on a serious note, like I know we've been talking about Real Madrid only for a long time, लेकिन मतलब एज अ बारसा फैन और ला लीगा फैन आपको लगता है दैट कहीं हम बात ही कर रहे थे आपके चैनल में कल की यार कहीं वो होता है ना वेयर द प्रीमियर लीग इज पंपिंग इवन मोर मनी और गेटिंग ऑल द बेस्ट मैनेजर्स गोइंग देयर तो with say Bellingham transfer hopefully Real Madrid gets for example or even say जो भी other links आ रहे हैं Mbappe I don't know अभी भी यार मैं तो I mean मतलब two minds वहां पर क्योंकि Mbappe has to prove in league year in year out थोड़ा in terms of teamwork लेकिन where are you saying you're saying कि यार नहीं change of transition जो हो रहा है बारसा upward trajectory और Real Madrid downward trajectory और आपको लग रहा नहीं just because of the World Cup year well नो देयर इज अ डिफरेंस अंकित भाई मतलब ट्रेजेक्टरी बार्सिलोना ने उठा ली है पिक कर ली है बहुत डिफिकल्ट ट्रेजेक्टरी थी कि हम जावी को ऐसे बुला के मिड सीजन पिक करते वो साइनिंग्स करते जो कि वो उसने किया तो दैट वाज अ रिस्की वन वो लीवर्स डालना इन प्लेयर्स को साइन करना मड्रिड थोड़ा सा स्लो पड़ गई आई एम लाइक शॉक कि मड्रिड ने अभी तक डिडंट टेक केयर ऑफ देयर प्रॉब्लम्स मतलब एक राइट बैक स्ट्राइकर का बैकअप अम्बापे नहीं तो दे डिडंट गो फॉर एनीवन राइट विंग पे यू वुड से कि मेकशिफ्ट में फेडी खेलते हैं कोई उसका एक चैलेंज करने के लिए नहीं है उस पोजीशन को रॉड्रिगो इज प्लेइंग मच मोर सेंट्रल एरियाज में एंड फिर मिडफील्ड में यू हैव सीन कि अभी क्रूज की न्यूज आ रही है दैट ही वुड रिटायर एंड मॉडरिच की रूमर्स हैं कि ही वुड नॉट रिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टफ तो आई वुड से कि बार्सिलोना ने शायद ट्रेजेक्टरी उस ट्रांजिशन में थोड़ा अर्ली ले लिया है एक साल का एडवांटेज है बट गिवन how I have seen Real Madrid go through their transitions, the worst transition they could have had was after Cristiano, but they managed it very nicely. And I think this point of time, this is the perfect time to promote and utilize some of their youngsters, but they are not doing it because Carlo has always been a manager जो कि एक perfect 11 पे भरोसा करता है. He doesn't change a lot of their players. Even when he was at AC Milan, मतलब and he even trusts Real those Madrid players or players trust him yeah. totally. Absolutely. So whatever he would decide, whatever he would say, not a lot of players would argue him. They would be like, "Ah, theek hai, Mr. said this, so we're gonna go with this." But it's point of time pe, maybe just because there are not so many opportunities bench pe, so you can go on and look for the youngsters in the team. जैसे कि हेड भाई भी यहाँ पे कह रहे थे कि I think Carlo believes in experience more than promoting new players. Subbing Kamavinga in El Clasico in halftime, Exactly. even after he was the best players.
So he doesn't believe in promoting new players. Hate bhai, I would not agree with this, to be honest, because मेरी बात सुनिएगा आप ध्यान से. I have seen plenty of games of Real Madrid where he has subbed off Kroos, he has subbed off Modric, he has brought in Camavinga, he has brought in Rodrigo, and he has won those games. So it's not like that. Maybe कुछ मैचेस में वो करता है, कुछ मैचेस में नहीं करता है, ऊपर नीचे हो जाते हैं उसके सिस्टम. बट आई हैव सीन हिम टेक ऑफ क्रूज, मॉड्रिच जब गेम टाइड है 1-1 या फिर गेम 1-0 वो हार रहे हैं. सो आई डोंट थिंक ही डज दैट. बट हाँ, एक बात तो डेफिनेट है कि promotion of youth, it's not about just अपने कार्लो एंचेलोटी, it's not just about him. Madrid का पूरा सीन रहा है कि that they don't work around their youth. वो कार्लो एंचेलोटी के ऊपर नहीं है, वो पूरी मैड्रिड की बिल्कुल. फिलॉसफी. भाई यहाँ पर कुछ कमेंट्स देख रहा हूँ मैं इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर्स, तो हम वो भी बात करें. एंड आई नो वी कमिंग टू द एग्जैक्ट गेम्स और बारसा की भी हम डिटेल में बात करेंगे. यहाँ पर एक आई थिंक निश्चित ने शेयर किया है अबाउट गावी. सो यहाँ पर आज सुबह आ रहा था कि गावी विल बी रजिस्टर्ड. आई थिंक द फैक्ट इज नया जर्सी भी यार खड़े होके, आई थिंक आई सॉ द पिक्चर, आई डोंट नो इफ इट वाज फोटोशॉप, pretty sure it was, but that was there. But I don't know how true this is, that if they can't register Gavi the first team player, the club does not meet two of the conditions, new requirements. That's interesting. So by watch this space, I would say. Lekin anyway, the fact is, I think it's just about age. The moment he crosses that age, by default will be there. Maybe, just maybe, possibility hai. It's about kahin na kahin sale, kahin na kahin salary. That might be one of the things which is looming. Or I'm guessing, just moving to Barca for a few minutes, Zee, I think यहाँ पर, if I'm not wrong, the Depay deal जो हुआ Depay to Atletico Madrid, there is a clause where they have an option to buy Carrasco. I think it's still under negotiation. तो I know हमने briefly बात की थी previously, but now that you're seeing end of January आने लगी है, and आपने देखा है जनवरी में जो हुआ है, plus Ferran Torres भी meanwhile I think suspended थे. Fati has come in and I would say he's done a job, certainly. So where are you seeing that Carrasco coming in makes sense? I think 20 odd million, rather आप जाओगे for a right back, is what I would assume, नहीं? अंकित भाई, फॉर अ लॉन्ग टाइम हमारी टीम में एक प्रॉपर लेफ्ट विंगर नहीं रहा है, एंड करास्को को मैं हमेशा से अप्रिशिएट किया हूं. आई हैव लाइक द गाय, काफी टाइम से मैं उसको देख रहा हूं खेलते हुए, एंड आई हैव सीन हिम डिलीवर. काफी इंसिसिव प्लेयर है, समवन ऑफ द काइंड जो कि डिफेंस को ब्रेक करेगा विद हिज रन्स. नीट फिनिशिंग है, अच्छा फुटवर्क है, गुड लिंकअप भी है उसका. तो अगर एक 20 मिलियन में करास्को ऐसा प्लेयर मुझे मिलता है, एंड गिवन कि हम कोई और बड़ा प्लेयर उस जगह पे साइन नहीं कर सकते, नाउ दैट वी डोंट इवन हैव क्या कहते हैं डिपाय, तो एक प्लेयर बेंच पे चाहिए. करास्को इज अ गुड प्लेयर. आई थिंक पीपल हैवंट सीन हिम प्ले दैट मच, तभी वो कह रहे होंगे कि ही इज नॉट नीडेड एंड स्टफ. बट हाँ, एज अ स्क्वाड डेप्थ की मैं बात करूं तो ही हैज डिलीवर्ड. ही नोज ला लीगा, ही हैज प्लेड अगेंस्ट अ लॉट ऑफ टीम्स, एंड ही वुड फिट सीमलेसली बिकॉज वो एक ऐसा बंदा है जो कि विथ प्रोवाइड करेगा आपको, पिच को स्प्रेड ऑलवेज करेगा, एंड ही लाइक्स टू कट इन ऑन हिज राइट एज वेल. तो मुझे लगता है कि ही वुड बी अ नाइस स्टॉप गैप सॉल्यूशन प्रोबब्ली फॉर 2 years, जैसे हमने आदत तुरान के साथ किया था. ही रियली हेल्प. कई लोग आदत तुरान को कह रहे थे कि व्हाट्स द नीड कि बारसा क्यों साइन करी, बट वी सॉ कि हमने उसका कैसे यूटिलाइजेशन निकाला. वाजंट दैट बिग अ सक्सेस, बट करास्को वुड बी अ बेटर फिट. So talking about squad depth, it would be important for us to sign someone, क्योंकि हम बड़ी signings नहीं कर सकते, हम बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते बड़े प्लेयर्स में. So I think it would be interesting for us to get Carrasco. Right back तो अपन को लेना ही लेना है. Yeah. तो नहीं, राइट बैक अगेन, मतलब आई नो दैट आप लिंक हुए थे जुरानोविच के साथ, देन मालो गुस्तो, रियल मैड्रिड, बारसा, चेल्सी, सब लोग इंटरेस्टेड. बट वही इंटरेस्ट एक चीज होती है, टॉट बॉल ही सबके पास होता नहीं जी भाई, नो फन इंटेंडेड. बट हमें पता है हमें बैन भी हमें ही मिलना है बाद में, वो तो बात की बात है. बट गौरव पूछ रहे हैं व्हाट प्लेयर्स यू वांट इन बारसा. सो नाउ हम अगेन बारसा वर्सेस सोसिएडाड हो रहा है, इसलिए हम आई थिंक इट कनेक्ट्स दैट एज वेल. कहीं ना कहीं जुबीमेंडी, नाउ जुबीमेंडी इज अ प्लेयर इन क्वेश्चन जो एक सिंगल पिवट में भी खेल सकता है, डबल पिवट में खेल सकता है. अगेन वर्ल्ड फुटबॉल में आप देखो तो बहुत कम है एक्चुअली उस प्रोफाइल के प्लेयर्स. तो आई थिंक इट एक्चुअली सूट्स वेल. बट व्हेन यू आर कंपेयरिंग अ बुस्केट्स एंड अ जुबीमेंडी, आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि यार मतलब लेवल क्वालिटी में, बट आर यू सीइंग मतलब जुबीमेंडी टू टेक दैट, मतलब ये होता है ना, मतलब जस्ट टेक द टॉर्च फ्रॉम बुस्केट्स एंड डू दैट. नहीं, आप बोलते हो नहीं प्ले, अगर वो आ जाता है सपोजेडली, हिम एंड डियोंग विल प्ले अ डबल पिवट एंड मे बी रोटेशन होगी बिटवीन गावी, पेड्री कैन प्ले लेफ्ट विंगर. व्हाट इज योर ओपिनियन? जैसे कि आप सोसिएडाड को देखो, जैसे कि मैंने जब स्टडी किया तो व्हाट आई रियलाइज कि दे हैव समटाइम्स प्लेड विद जुबिमेंडी एंड इलारामेंडी, बोथ ऑफ देम आर सिक्सेस, एंड दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी. एंड मैंने देखा कि जब भी इलारामेंडी और जुबिमेंडी भी खेल रहे हैं, तभी भी जुबिमेंडी इज प्लेइंग एज अ लोन पिवट.
एंड जावी ने जुबिमेंडी के बारे में एक बात बोली जो कि मुझे बहुत सही लगी. उसने बहुत अच्छा एक लाइन में उसने डिफरेंस बता दिया बिटवीन बुस्केट्स एंड जुबिमेंडी की मे बी जुबिमेंडी वुड बी मोर फास्ट, more athletic, more physical, yeah, aggressive Mm-hmm. than Busquets, Mm-hmm. but Busquets Mm-hmm. is more technical. But कहीं ना कहीं इस point of time पे everyone knows कि we need that part of abilities more than we need the technicality, because technicality even De Jong लेके आता है. So maybe we can go with a player like Zubimendi जो कि थोड़ा ज्यादा फास्ट है, क्विक है, इंटरसेप्शंस करने में, बॉल रिट्रीवल्स करने में, कवरिंग द लाइंस, एंड थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव है प्रेसिंग आउट फ्रॉम द बैक में. तो आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग होगा. एंड या जो आपने कहा ये फ्रेंकी और जुबिमेंडी को साथ में खिलाना वुड बी वेरी वेरी गुड. मजा या आएगा. मतलब वही है, ऑप्शंस ऑप्शंस मतलब कैसी अगेन आप जानते हो जी भाई, एंड ऑल पीपल वाचिंग बाय द वे यार, 300 लोग देख रहे हैं यहाँ पर. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर कमिंग ऑन, स्टिक अराउंड टिल देन. बहुत सारे बातें कर रहे हैं अबाउट कोपा डेल रे, वी आर टॉकिंग रियल मैड्रिड बारसा, बेसिकली वी आर डिस्कसिंग इट. हाई टाइम दैट वो डिस्कस किया जाए, बिकॉज कहीं ना कहीं वो ट्रांजिशन लग रहा है हमें दोनों क्लब्स का. बट सब लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप यू हैव सब्सक्राइब टू नो बोथ ऑफ आवर चैनल्स, इट्स ऑलमाइटी स्पोर्ट प्लस एंड ऑलमाइटी ब्लूज एफसी. इट्स ऑलवेज अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी, as well as both of Z Boys channels. Again, I say a lot of times हम देखते हैं लेकिन हम सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं. So please consider subscribing them and give a follow to Bombay Pinya. All the handles are below, tagged below. So do check them out. Absolutely, just takes a second. यार अक्षर पूछे which fullback would you love to see in Barcelona? वो ये नेकी और पूछ वाली चीज हो जाती है ना जी भाई. तो I don't know. मतलब do you have an option? Do you have a or other preference? Put it that way. Option तो क्या मतलब A ज्यादा fit, बोल दिया मैंने, लेकिन preference है कोई a fit fullback Reece का जो James, fits? a fit अरे Reece भाई James. come on. मतलब even now after getting injured thrice in a season. अरे he is great player यार अंकित भाई. You know when he is fit, he is the best fullback यार. लोग Obviously, yeah. हकीमी ट्रेंड का नाम लेते हैं, but when you talk about fullback and what is the role of a fullback, primary role is to defend. And जब वो बंदा attack में भी contribute करे the way that he does, I'm a fan. और obviously Trent is also up there, but Trent की defending के issues लगे होते हैं. He is much more dependent upon कौन उसके साथ खेल रहा है. But Reece is Reece, वो अकेले he'll bombard, he'll defend. But anyways, that's a lost cause. वो तो हम सही नहीं कर सकते. Like Prithvi is saying कि this guy Foyth है. Foyth, Pedro Porro, but Pedro Porro won't be here. वो Spurs जाएंगे. 37 million pounds की deal हो रही है. 40 million pound, 45 तक जाएगा वो probably. I think Spurs are very close to sign another player. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई डोंट थिंक कि बार्सिलोना ने कोई पर्टिकुलर प्लेयर पिन पॉइंट करके चूज कर रखा है. दे हैव साइंड, दे विल बी साइनिंग एक प्लेयर फ्रॉम पल्मीरियास करके, वो ब्राजील में जो फिर टीम है हमारी, 19 ईयर ओल्ड प्लेयर, राइट बैक, वेस्टर्न नाम है शायद उसका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं भूल रहा हूँ. तो उसको हम बारसा एथलेटी के लिए देखेंगे डेफिनेटली. बार्सिलोना एथलेटी पे वो रहेगा अभी फॉर टाइम बीइंग. बट देन देयर इज अनदर यार गाय. ये इंटरेस्टिंग है लेकिन ना मोलिना वाला चीज, या मतलब आई एम सरप्राइज क्योंकि यार लास्ट समर में इफ आई एम नॉट रॉन्ग मूव टू एटलेटिको, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग पीपल. या तो मतलब आई नो एक चीज होता है कि वर्ल्ड कप में छाया बंदा, आई थिंक हिम एंड मॉन्टियल प्लेड अ वेरी गुड काइंड ऑफ एक होता है ना टू प्लान ए प्लान बी वाला राइट बैक वाला मोड उन्होंने प्ले किया, और दैट इज समथिंग दैट एवरी टीम नीड्स समवेयर ऑन द लाइन. जो हमारा लेफ्ट बैक में हुआ करता था, जी भाई विल रिलेट टू दैट, वी यूज्ड टू हैव चिलवेल एंड अलोंसो. So something like that, you always need a right back, one attacking right back. जैसे say for example मैन सिटी has आज के दिन में they have like अगर उनको चाहिए डिफेंसिव फुल बैक तो they go with Aki on one end, और अटैकिंग चाहिए तो they go with Cancelo inside फुल बैक, जो इन्वर्टेड फुल बैक हो जाता है. लेकिन मोलिना नाउ अगर एटलेटिको मैड्रिड से फॉर एग्जांपल गो विद अ न्यू मैनेजर एक्सेट्रा, डू यू सी एटलेटिको मैड्रिड, क्योंकि अभी भी मैं दिखाने वाला हूँ यहाँ पर टेबल, आई थिंक फोर्थ है ला लीगा, एंड वी ऑल नो एटलेटिको मैड्रिड मतलब अभी उस नहीं, यू कैन नॉट से दैट इट्स अ प्राइम एरा ऑफ एटलेटिको मैड्रिड. अभी वापस से रीबिल्ड करना पड़ेगा उनको, मुझे लगता है. तो इट इज मे बी आप अटैक कर सकते हो विलारियल और एटलेटिको मैड्रिड को, फॉर एनी क्लब व्हिच हैज मनी टू बी ऑनेस्ट टू काइंड ऑफ गो फॉर इट. तो पीपल लाइक मोलिना, ये फॉयथ, मतलब आई थिंक विल प्रोबब्ली बी प्राइम टारगेट्स, नहीं? डेफिनेटली अंकित भाई. एंड लेट मी से दिस आउट लाउड. अगर 20 मिलियन 25 मिलियन में मोलिना अगर बारसा आ सकता है ना, तो मोर देन करास्को आई वुड लाइक टू गो फॉर मोलिना. मतलब बार्सिलोना को मोलिना के लिए वो क्लॉज रखना चाहिए था कि यार अपन मोलिना को साइन करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज ही हैज रियली प्रूव्ड व्हाट ही कैन डू. और उसको हमने देखा वो एग्रेसिवनेस के साथ खेलना, एंड ही हैज शोन कि वो एक टैक्टिकल फिट भी है, बिकॉज ही इज वेरी गुड ऑन द बॉल, लिंकअप्स में अच्छा है, कैन स्प्रेड द पिच आउट वाइड, कैन डिफेंड वेरी सॉलिड. एंड नाउ मार्टिनेज इज आल्सो अ वेरी गुड प्लेयर एज वेल. उस पे बार्सिलोना इंटरेस्टेड है. बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लेट्स नॉट रश, लेट्स नॉट गेट अहेड ऑफ आवरसेल्व्स. अभी बारसा कांट साइन एनीवन.
So until the Yeah. summer comes, we don't know कि किसको हम sign कर सकते हैं, किसको नहीं. या So तो अभी I अननोन think it कमोडिटी would be who are like potential yes. players who might come for cheap at best, you know. वो आप बोल सकते हो. मतलब अगेन जो, क्योंकि यार रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है इन टर्म्स ऑफ गावी एक्सेट्रा, तो Absolutely. कहीं ना कहीं नंबर्स की भी बात हो जाती है. भाई मयंक, मैं आपका देखा हूँ काफी देर से क्वेश्चन आ रहा है भाई. अपडे वाला तो हो गया लाइक आई थिंक, मतलब मैं तो समवन हु रिलेट्स वेरी वेल. चेल्सी हैज लेट गो सो मेनी प्लेयर्स इन द पास्ट दैट वी काइंड ऑफ रिग्रेट एट द एंड ऑफ द डे. लेकिन एट सम पॉइंट वो बिजनेस है ना, मतलब आई नो वो चीज होगी, लेकिन आई डोंट थिंक बाइंग बैक वुड हिम मीन एनी सेंस, राइट? बिकॉज आई थिंक ही सोल्ड. पता है, नहीं नहीं अंकित भाई, I think he's gone on loan if I'm not लोन wrong. है क्या? I अच्छा, think ओके लोन है देन बंदे फाइन. का. हाँ, बंदे का लोन है. एलेक्स कोयादो का भी लोन है, निको गोंजालेस का भी लोन है. what I was thinking was कि अगर हमें एक बैकअप पे एक प्लेयर चाहिए ना, तो मोलिना अगर या अच्छा, कोई राइट बैक जुडला सेंटर जुडला गेट एड सोल्ड है, विद राइट? जुडला इज सोल्ड, जूड फरहान जुडला. सोल्ड है ये. हाँ, वो जूडला इज सोल्ड है, सोल्ड. राइट. हम एब्डे को वापस ला सकते हैं, एंड व्हेन ही प्लेड ना, उसने अच्छा कंट्रीब्यूशन किया था, स्कोर्ड अ गोल एज वेल. तो आई थिंक दिस गाय कैन बी यूटिलाइज. जो हमें एक एक्स्ट्रा डेप्थ में चाहिए उस लेफ्ट हैंड साइड पे, Abde could be that guy. तो मे बी मोर देन Carrasco, I would go for our guy, and that is Abde. Okay, fair enough. I'll take a couple of comments अभी. I know Yeah, काफी लोग Sandeep यहाँ सही पर कह है रहे भाई. हो आप. Again, do not forget to hit that like button absolutely, and do consider subscribing to all our channels as well as the panels channels here. Instead of Carrasco, Barca should sign Marcus Thuram because Lilian Thuram played for Barca. Just भाई because I his dad wish. played, and just because उसकी dream है, just because Kvaratskhelia Madrid fan है, just because Mbappe Madrid fan है, या just because Jude Bellingham हाँ, Liverpool fan हो, bro, it doesn't work like that, यार. It doesn't work like that. ये FIFA मोड right. नहीं है, ना ही ये ड्रीमलैंड है, bro. मार्कस थूरम एट बार्सिलोना. कम ऑन मैन, वो वैसा आउटपुट नहीं है वैसे बंदे का, वो वैसी टेक्निक नहीं है, वो वैसा फिट नहीं है. वो ही कुड बी दैट एक्सप्लोसिव प्लेयर कि वो आए, खेले, स्टार्ट किए, सॉरी सेकंड हाफ में आए, एंड ही प्लेस फॉर लाइक 30 मिनट एंड ही कैन गो एंड बैंक दोस गोल. ही हैजंट कन्विंस्ड मी in that conversion rate so much. I would need much more technical player in that area than a rugged one. And talking about Chelsea, Tiger Beast, welcome to the stream यार. I know आज थोड़ा सा La Liga focused stream है, but always interconnect होता है भाई बारसा चेल्सी, और ट्रांसफर्स में rivalry है, तो we know that there's no understatement वहाँ पर, clear है. लेकिन I know Kante was linked. Kante is अभी तक साइन नहीं किया एक्सटेंशन जी भाई. जॉर्जिनो को आपने कैंसिल कर दिया था कि नहीं, हमें नहीं लेना है. चलो फेयर इनफ. आई वुड स्टिल कीप जॉर्जिनो ओनली फॉर द फैक्ट कि वो आज के दिन में सबसे ज्यादा फिट मिडफील्डर अपना एटलीस्ट एक बंदा हमें पता है कि रहेगा, टचवुड. लेकिन जिएश, नाउ जिएश इज एन इंटरेस्टिंग वन. आई नो जिएश को विल पुट इन द विंडो ओनली इफ वी गेट मनी, टू बी ऑनेस्ट. So I don't see him going right now. लेकिन by chance अगर Ziyech ends up staying at Chelsea, समर में maybe you'll make some money. I don't know Ziyech because आप बोल रहे थे about wingers. I know that Dembele, मतलब वही है enigma. We have spoken enough जी by me and you like about Dembele. Rafinha, मतलब jury is out कि आप बोलो कि नहीं उसको यूज नहीं किया गया in the right position lot, और you are saying कि नहीं we need a winger for sure. पता नहीं, I don't know, let's see. I still feel that Ziyech would work better in a European side, सच में बोलूं तो. या सही कह रहे हो आप. मुझे भी ऐसा फील होता है तो और एक्सपांसिव फुटबॉल जो खेलती है, और टेक्निकल यूटिलाइजेशन ऑफ द विंगर्स रादर देन पुशिंग फ्रॉम द मिडफील्ड, आई थिंक दैट वुड बी अ बिट बेटर. तभी वो आयाक्स पे ज्यादा थोड़ा फ्लरिश किया. Yeah, by the way, Nishit, thanks for sharing that या again. वेस्ले भाई ग्रेवनबर्ग I think नॉट अ बाय ने मना 6 कर दिया लोन पर. लोन के लिए, लाइक दे वांट टू कीप हिम, राइट? So yeah, so they are like we'll either sell him or we'll keep him as per ओह February अच्छा. show. मैं 1 घंटा पहले हाँ वीडियो हाँ देखा हाँ था. हाँ हाँ. ओह अच्छा अच्छा, ग्रावेनबर्च के लिए भाई पेशेंस रखना चाहिए यार बायर्न को. ही इज अ गुड प्लेयर यार, ही इज अ गुड प्लेयर. प्रोबब्ली पता है क्या, गोरेट्स्का की जगह पे यू कैन ट्राई टू प्ले हिम. मतलब हाँ, ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी की बात है कि मैं गोरेट्स्का आर द गो टू गाइज राइट नाउ, बट मुझे लगता है Sabitzer would move on. Sabitzer would move on from Bayern, but Gravenberch is a great box to box player यार. फॉर्म नहीं उसका भी अच्छा, बट बारसा पे he can't be a 6. He's not a 6. Yeah, Gravenberch is really, मतलब मैं बोलूंगा he is more like a number 8, or who can kind of Yes, play as an 8/6 at times. बिल्कुल अंकित In भाई. हाँ. Eredivisie वो खेला है lot of times in 4-2-3-1 as well as 4-3-3, लेकिन ज्यादा you know that वहां पर 4-3-3 खेलते थे वो लोग, तो I think Yeah. it makes more sense for him to. Edson Alvarez used to be the main pivot. उसके around यहाँ से Exactly, left hand side से right, he used to play. So I've often correct. seen him be in the box, हाँ. man. कई बार वो बंदा box पे खड़े होकर shot ले रहा है, वहाँ पे वो crosses का wait कर रहा है. तो not a 6, but
लेट्स सी। मतलब वही है एज अ प्लान भी कभी जैसे बारसा कभी कभी करती है दे गो टू इन मिडफील्ड कभी कभी जैसे रिसेंटली मिडफील्ड, किया हाँ, था जावी तो आई बिल्डअप। थिंक इट्स वेरी रेयर मेनली इज एन 8 एक्चुअली लेकिन अगेन देखते हैं यार मतलब आई एम अ बिग फैन लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लाइमर वहां जाने से जी भाई आई डोंट नो व्हाट्स हिज फ्यूचर इन बायर्न नहीं, म्यूनिख टू बी ऑनेस्ट नहीं तो वो नहीं लेते ना बट एनीवे यहाँ पर अगेन लॉट ऑफ ऑप्शंस है गौरव लेकिन लाइक जी भाई सेड ऑलरेडी इट्स अबाउट आई थिंक दे हैव टू वेट फॉर नाउ I think immediately तो मुझे नहीं लगता यार मतलब honestly speaking that you know Barca will be making a lot. It's just that for the summer they can plan. अब वही है outs आप plan करोगे सर्जियो रोबर्टो भाई जी भाई come on as in I know he's offering to Chelsea बहुत दिनों से लेकिन सर्जियो रोबर्टो भाई I'm shocked that this guy is still in Barca as much as वो I know he's a team man and all that agreed लेकिन जी भाई that is मतलब सबसे बड़ा फियास्को है जैसे सर्टन प्लेयर्स जैसे हमारे पास आज के दिन में भी स्टिल है बाकायोको ऑन चेल्सी बुक्स बाबा रहमान इमेजिन इट्स क्रेजी राइट टू अनबिलीवेबल टॉक है यार, अनबिलीवेबल है सीरियसली। यही तो है, कुछ ऐसे प्लेयर्स है जो कि जिससे हम हाथ नहीं छुड़ा पाते हैं, बट ठीक है, बंदा डिलीवर कर रहा है। ही प्लेड लास्ट गेम, अच्छा परफॉर्मेंस था उसका, बट नॉट द वन फॉर द फ्यूचर। या एब्सोल्युटली भाई संकल्प आई नो एंटनी बेचारा बहुत ही हेट से गुजर रहा है अभी सच में बोलूं मतलब मैं इनफ देखा हूं यार मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग दैट एंटनी इज अ प्लेयर इट इज जस्ट दैट आई थिंक जी भाई आई वुड लाइक टू हियर मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है पोजिशनल प्ले जो टैक्टिकल प्ले होता है ना आई डोंट थिंक एंटनी इज अ प्लेयर ऑफ सच मैचेस एंटनी इज अ काइंड ऑफ गाय जो आपको काउंटर अटैक करना है या बेसिकली यू आर प्लेइंग फ्री फ्लो यू नो एज एन फास्ट पासिंग फुटबॉल जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का है आई थिंक ही वुड वर्क वेल बट आई थिंक एंटनी को मतलब अगेन पीपल आर मे बी जजिंग बिकॉज ऑफ द प्राइस टैग एट सम पॉइंट नहीं लेकिन अच्छा, वीक व्हाट इन इफ वीक आउट वाला एंटनी, प्लेयर नहीं है एंटनी अगर 40 मिलियन का होता, व्हाट इफ एंटनी अगर 40 मिलियन का होता, तो व्हाट वी वुड हैव एक्सपेक्टेड आउट ऑफ हिम? हमारा माइंडसेट क्या होता एंटनी को लेके? क्या हम कहते हैं हाँ भाई चल ठीक है, ठीक ठीक कर रहा है, या फिर वी वुड हैव लाइक भाई क्या परफॉर्म नहीं कर रहा? अच्छा, आई नहीं थिंक ही इज बेसिकली नॉट आई परफॉर्मिंग, थिंक टू बी ही इज ऑनेस्ट। नॉट वीक इन मतलब वीक आउट आपको रोटेट करना ना, पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ द टैक्टिक्स मैच जैसे फॉर बिग मैचेस मुझे नहीं लगता एंटनी इज द आइडियल गाय क्योंकि बिग मैचेस के लिए आई बट थिंक यू अंकित नीड भाई, समवन मोर फॉर डिसिप्लिन डिफेंसिवली डिफेंसिवली डिसिप्लिन डेफिनेटली चाहिए, तभी आई थिंक आरन वन बिसाका को राइट हैंड साइड पे होने से थोड़ा और फायदा मैन यूनाइटेड को मिला है टू डिफेंड जब एंटोनी खेलते हैं। द सेम केसेस विद रफीनिया। आप रफीनिया को देखो, उसका डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा रहता है, ही डिफेंड्स मोर देन व्हाट एंटोनी डज। एंड जो आपने बात बोली ना टैक्टिकल डिसिप्लिन उसका, आई थिंक इस पॉइंट टाइप आई थिंक कहीं ना कहीं उसके ऊपर प्रेशर है टू परफॉर्म, टू डिलीवर, ही इज ट्राइंग टू डू सम थिंग्स। उसको लोग वन ट्रिक पोनी कहते हैं। मुझे लगता है कि ही हैज अ फ्यू वीकनेस दैट वो टेक ऑन नहीं करता है पेस पे। ठीक है, हमने देखा पिछले मैच में थॉमस पार्टे बीट हिम इन अ फुट रेस, वो सरप्राइजिंग लगा मुझे। ही डजंट हैज दैट या पेस यू नो ऑन द राइट हैंड साइड। वो वैसा नहीं, राशफोर्ड जैसा नहीं कि वो बॉल लेकर भाग जाएगा। ही इज एन मच मोर इंट्रिकेट ड्रिबलर, जो राइट से आएगा, दो तीन स्टेप्स लेगा, एक प्लेयर को बीट करेगा, दो को बीट करेगा, विल कम इनसाइड, मे बी गिव अ फाइनल पास और मे बी गो फॉर अ कर्लर, बट यू कांट expect him to spread the pitch wide from the right hand side and right foot से वो क्रॉस डाले। there are some limitations to him, but वही मुझे देखना है कि why does Erik ten Hag wed for this guy for 100 million? वो क्या ऐसा आउटपुट या उसका देखना चाहते? And even at Manchester United especially कि he has worked with him at Ajax, but Man United पे वो कैसे वर्क करेंगे, ये मुझे इंटरेस्टिंग लगता है थोड़ा। यप लेट्स सी अगेन भाई कमिंग बैक टू बार्सिलोना एंड सोसिएडाड आज रात को बाय द वे यहाँ पर जगन्नाथ वापिस पूछते हुए भाई ढूंढते रहियो यही मैं बोलूंगा अभी के लिए तो यही है आंसर लेकिन वही सच्चाई है इसलिए मैं शुरू में बोल रहा था जी भाई कम ऑन लेट्स डू समथिंग यार हमें कुछ पिटीशन साइन कुछ करना करना पड़ेगा है। ऑल फुटबॉल फैंस ऑफ इंडिया भाई कहीं ना कहीं और आई नो दैट यहाँ पर मैं खुद शुरू में बोला था जी भाई दैट माई क्लब चेल्सी एंड मिलान दोनों ही बुरे दौर से गुजर रही है लेकिन कल मिलान का भी यार मतलब कप मैचेस में कहीं ना कहीं आई थिंक सम मैचेस कम सम डोंट कम यूवेंटस एटलांटा वीकेंड में था 3-3 व्हाट अ गेम यार देखने को नहीं मिला मतलब लाइव टीम में मतलब समवेयर डाउन द लाइन देयर हैज टू बी कुछ करेंगे यार मतलब क्या कर सकते हैं पता नहीं आप लोग आइडिया दीजिए अंबानी अंबानी, बट जियो जियो, जियो सबके बिल्कुल राइट है बिल्कुल यार, हमखोर। Absolutely. By the way, a big up to football comedy. यार इनका भी channel absolutely हाँ, member of Almighty fam. Anthony seems to be one dimensional because he always cuts in, takes a shot, he never seems to pass. In Premier League, is gonna. नहीं मतलब I get what you're saying, but I honestly disagree because there are a lot of players in the past who've also done that. भाई रफीना कौन सा हजार, two dimensional है यार? To be very honest, I think वेल Rafinha does a हजार lot of को work. मैं, हाँ, हजार को मैं वन डायमेंशनल नहीं बोलूंगा, बट आई वुड से ये लेटर पार्ट वाला उसके लिए सही है। ही डजंट टेक Iron शॉट Robin. काफी ज्यादा। हाँ, आया एंड रॉबिन, या रॉबिन Yeah. फाड़
तो मतलब you need to get a way to kind of deal with situation in terms of that, right? But anyway, by अब रियल सोसिएडाड मतलब आई थिंक दे वन मतलब 2020 में जीते थे, if I'm not wrong. 1920, yeah. 1920 season में they won, and I think Barcelona again they are chasing the 32nd, which will be like 30. wow, as in what a record. But Real Sociedad, I think defensively they have not let in a single goal in the last 630 minutes of 6. football. Yeah. तो आई नो बारसा भी रिसेंटली सबने देखा था फेरान टोरेस का जो कुंफू चल रहा था एंड ही गॉट सस्पेंडेड एंड ही इज बैक नाउ एंड आई थिंक ऑब्वियसली लेवेंडोव्स्की इज बैक. तो क्या लगता है मतलब प्रीटी स्ट्रांग साइड ही एक्सपेक्ट करोगे जी भाई टू प्ले अगेंस्ट रियल सोसिएडाड? और डेफिनेटली अंकित भाई स्ट्रांग साइड में एक्सपेक्ट करूंगा बार्सिलोना टू गो विद मिड 4 जैसे कि हमने मैड्रिड के अगेंस्ट खेला था. And in terms of injuries, I think Christensen had a slight issue weekend में, if I'm He's not there. wrong. He'll be there. हाँ. तो Christensen मतलब और I know Rojo he's दोनों लोग रहेंगे. squad में है, तो this is what you would expect. I don't know if you would make any changes. Anyone in the chat like बोलिए. Probably इस पॉइंट पे अपना कुंडे को सेंटर बैक देख सकते हो और रोहो को राइट बैक देख सकते हो बिकॉज कुंडे परफॉर्म्स बेटर in the center back position than being at the right back, and Araujo is a bit more comfortable being on the right than being on the left. मुझे लगता है राइट्स पे इसको रहना ज़्यादा ज़रूरी है because Oyarzabal would play that free roam क्योंकि डेविड सिल्वा इज आउट, मिकेल मेरिनो इज आउट, तो प्रोबब्ली हम इलारामेंडी के साथ हम जुबिमेंडी को देखेंगे एंड ब्राइस मेंडेस ऑन द राइट साइड, मतलब जॉर्डी अल्बा वाले साइड से होगा. बट देन हाँ एक चीज और अंकित भाई, आई वुड रादर गो विद जॉर्डी अल्बा इन दिस गेम एंड चेंजेस के लिए आई थिंक यहाँ पे मैं बुस्केट्स दिया हूँ, पेड्री एंड गावी को स्टार्ट करूंगा, नॉट फरहान टोरेस, एंड प्रोबब्ली डेम्बेले फॉर रफीनिया एंड अप टॉप लेवा. मतलब वही मिड 4-4-2 काइंड एक वर्जन जहाँ पे 4-2-3-1 हो जाएगा वो, विद पेड्री एज अ कैम एंड गावी एज अ लेफ्ट विंगर, फॉल्स लेफ्ट विंगर. निश्चित बोल रहे ऑल आर अवेलेबल फॉर टुडेज मैच. दैट्स ग्रेट भाई. जावी का बर्थडे है क्या? अच्छा मुझे पता नहीं था यार. अच्छा हैप्पी बर्थडे यार भाई. जावी इज अ लेजेंड ऑफ फुटबॉल यार, नॉट जस्ट बार्सिलोना. आई थिंक एब्सोल्युटली ग्रेट. मतलब जावी तो मतलब आई थिंक you can hear his name even next century में. He's that kind of footballer for me, and for me मतलब again Chelsea fans won't forget यार जो हुआ था 2009 में जावी इनिएस्टा जो किया था ना, मतलब it is a very मतलब बोलते हैं ना bitter sweet वाला चीज हुआ था. Like football is a great competition and they were probably the best. मतलब जी भाई was that the best ever Barca side or you think it was probably mid 2010s वाले? मतलब what is your best ever Barca side जो आपने देखा है? Best ever Barca side मैं I would not go and call that MSN wali side best ever because I would say कि वो probably it was because of MSN, Messi, Neymar, Suarez, they literally made them what they were. तो I would say कि वो जो अपनी इससे पहले sextuple winning वाली side थी जहाँ पे we were even exploited defensively, थोड़ा सा vulnerable थे, but still हमारे पास वो जो hunger थी, वो जो talent था pitch पे, जो fight थी, वो 2011 बेसिकली जब मैनचेस्टर यूनाइटेड वाज वॉक्ड आउट ऑफ द पार्क, वो वाला पार्ट था जब आई बिलीव डेविड विया पेड्रो वाला पार्ट था, एंड वहां पर लियो मेसी इज अ फॉल्स नाइन भाई, हराम खोर जावी केटा एंड ऑल. तो आई थिंक दैट वाज एपिक, वो मेरे लिए सबसे फाड़ है. आई थिंक ये वाला भी मतलब रोनाल्डिन्हो एटू मेसी यार वाज ब्रिलियंट. लेकिन उस समय शायद मेसी वाज मतलब आई थिंक लिटरली रोनाल्डिन्हो एंड मेसी काइंड ऑफ टुगेदर. I wish I would have seen that a little bit longer. मतलब वो ये रोनाल्डिन्हो ज्यादा डिप हो गया थोड़ा सा जल्दी, लेकिन I wish वो ज्यादा होता. मतलब that would have been something for चेरिश. मतलब अभी भी हम याद करते हैं काफी सारा. by the way 8744B यार बारसा fan in the house, nice to see you bro. Hope you're well. 2010-11 वाला सब लोग बोल रहे हैं भाई. Absolutely Christensen is the best signing of the season by Unique Football, hands down. Yeah, मैं तो ये बात अंकित भाई आई थिंक साइनिंग के 2-3-4 मैचेस के बाद जब क्रिस्टियनसन ने खेला, आई सेड दैट देन एंड देयर मेरे लिए क्रिस्टियनसन बेस्ट साइनिंग. अभी तक आई एम स्टिक अलोंग विद इट एंड आई थिंक अब मैंने काफी लोगों को इस बात के लिए कन्विंस भी कर लिया. बट देन आप देखोगे टाइम एट टाइम दिस गाय हैज डिलीवर्ड बेस्ट साइनिंग फॉर अस. पीपल वुड से लेवांडोव्स्की, पीपल वुड से मे बी कोई और, बट फॉर मी क्रिस्टियनसन. मतलब अपन का बार्सा का डिफेंस राइट नाउ इज द बेस्ट डिफेंस दैट आई हैव सीन इन द लास्ट प्रोबब्ली 6-7 इयर्स. मतलब अगेन मतलब इट जी भाई अराहो जब वो साइन नहीं किया था लास्ट ईयर, मैं बार लाइव स्ट्रीम में बात करते थे कि यार अराहो यार अभी दे दो, अभी तक साइन नहीं किया. आई डोंट माइंड डूइंग अ स्वैप विद क्रिस्टियनसन, लेकिन उस समय क्रिस्टियनसन भी वहां चला गया भाई. ऋतुराज आई डोंट थिंक सो यार. आई थिंक क्रिस्टियनसन लुक्स हैप्पी. फॉर मी क्रिस्टियनसन का बहुत इंपॉर्टेंट है ये. सर्टेन प्लेयर्स होते हैं ना जहां पर यू नीड टू बी लव्ड,
and he is one of them. Actually, Christensen is one of them for sure. नहीं तो you can see Christensen again, वो दिखाता नहीं, is not very what do you say, बहुत ज़्यादा इमोट नहीं करता, लेकिन वो आपको दिखता है पिच पर. I think Christensen is that. In fact, arguably मैं I would say that Chelsea में जो चैंपियंस लीग विनिंग सीजन था, उस सीजन में he was one of the best apart from this season. लेकिन बोरेशिया Even Euros में. Mönchengladbach में था ना, you remember जब वो लोन पर गया था भाई साहब, मतलब 2 brilliant seasons he had. तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ क्रिस्टियनसन रहेगा ना, I think कहीं ना कहीं you have a plan B. This guy is a proper ball player in a back three also. And he has to start in our defense. कोई भी तुम कुछ भी कर लो, तुम कुंडे रहो कुछ भी कर लो, क्रिस्टियनसन स्टार्ट करेगा. I don't want to see a backline of Rojo and Kunde together. Christensen calms it down, slows it down. And यहाँ पे मुसैब सर कह रहे थे कि what about the Barca when Messi scored 90 plus goal? हाँ सर, ये 2012 में था, but वो वाले Barca तो it was all about Leo Messi. I won't say कि वो like best version of Barca थे, वो best version of Leo Messi था probably. As a team, Museba is what we were discussing. But yeah, Ronaldinho is lot of people have Ronaldinho as goat. In fact, मैं बोलता हूँ the best goal ever scored by an opposition player at Stamford Bridge was Ronaldinho. यार मतलब भाई वो crazy goal था against Petr Cech. That was crazy. मतलब I think we won 4-2, but at the end of the day, it was a great match. 2005 की बात है. One of the few players जिसको संtiago Bernabeu applaud की और इस परफॉर्मेंस में जिसने गोल मारे थे. भाई बिग न्यूज ये, मतलब हम डिस्कस किए थे कल, लेकिन नाउ दैट यू हैव गॉट भाई 48 आवर्स टू सिंक इन दैट. जी भाई क्या लगता है, मतलब अभी भी होप है? हमने बात किया डेम्बेले माइट नॉट बी द लॉन्ग टर्म ऑप्शन, मेसी कमिंग नहीं, I think the Messi would not be for a replacement of anyone. Messi would just be there because he's Leo Messi and this is his home. And Dembele ka replacement obviously में चाहिए. I do not want Barcelona to continue in the next years with this guy. No disrespect to Dembele, he's a great player. Probably Leeds खिला दो, वो बहुत फाड़ेगा वहाँ पे Leeds में. But at Barcelona मेरे भाई, I don't want a player like Dembele यार. I understand. भाई अभी थोड़ा प्रेडिक्शन हो जाए. इट इज बार्सिलोना इज एट द कैंप नो, आई बिलीव. आज रात को है रियल सोसिएडाड के साथ. तो आई थिंक लास्ट 7 मैचेस नॉन स्टॉप आई थिंक यू बीन बीटिंग सोसिएडाड. आई डोंट थिंक हेड टू हेड इज समथिंग जो आपको स्केयर होना चाहिए, डिस्पाइट सोसिएडाड हैविंग दैट फॉर्म उनका. लेकिन मतलब जनरली फॉर्म अच्छा रहा है. बार्सा भी रन ऑफ गेम से विंस ले रही है, वो लोग भी विंस ले रहे हैं, लेकिन इंजरीज कहीं ना कहीं कुबो माइट बी द डेंजर एलिमेंट. ओयारज़ाबाल कमिंग बैक, लेकिन वो भी इंजरी से बाहर आ रहा है कहीं ना कहीं, राइट? तो क्या लगता है, मतलब थ्रेट है, बट व्हाट आर यू सेइंग स्कोर लाइन? Scoreline, I think Barca will win. Jitna, as much as I want this to be an even matchup, I'm a Barca fan. I want Barcelona के लिए आसान रहे, but आसान हो चुका है because they don't have their key players. कुछ players injured हैं उनके सबसे important. Mikel Merino, David Silva won't be there. Takefusa Kubo को last match में they did not start him. पूरा खिलाया नहीं था, रेस्ट दिया था उसको. तो आई थिंक इस बार इंटरेस्टिंग होगा टू सी कि कोच मानोल क्या करेंगे. सोरलॉथ हैज बीन इन ग्रेट फॉर्म, ही इज बीन डूइंग वेरी गुड, बट मुझे लगता है थोड़ा सा रिस्क लेंगे, वो खिलाएंगे टाकेफुसा कुबो को. आई थिंक ओरियाज़ाबाल वो एक होल प्लेयर के तरीके से एज अ 10 खेलेंगे बिटवीन द टू, behind the two forwards. They would provide that midfield control. Xavi said कि Sociedad likes to keep the ball. तो हमें उनको बॉल से डिवॉइड करना है, मतलब हमें बॉल रखनी है, तो जितना हम बॉल रखेंगे उतना वो स्ट्रगल करेंगे, एंड वाइस वर्सा. ये दोनों टीम ऐसी है दैट who thrive with the ball. तो हमें उनको पोजीशन से डिप्राइव करना है, हमें इंटेलिजेंट बॉल विन करना है, एंड फॉर दैट इज द ओनली रीजन जिसकी वजह से मैंने कहा 4 मैन मिडफील्ड रखो. वी कैन कंटेन एंड यूज द बॉल इन अ बेटर वे. तो आई एम गोना गो एक, क्योंकि कप गेम है, इट्स वन ऑफ गेम, कैंप न्यू पे है, आई एम गोना गो 3-1 प्रोबेबली. मुझे लगता है कि सोसिएडाड वुड स्कोर अ गोल. मुझे पता है कि 3 गोल खाना उनके लिए इट्स नॉट नॉर्मल सी, मुश्किल है 3 गोल तो नहीं खाएंगे, बट कप गेम है, 1 गोल अगर खाते हैं दे वुड वांट टू कम एट अस एंड देन ओपन अप होंगे चांसेस, एंड प्रोबेबली वहां पे हम बरी कर सकते हैं. एंड टुवर्ड्स द एंड डेस्परेशन में यू नो कुड हैपन कि हम एक और गोल निकालें. मुश्किल है, बट लेट्स गो फॉर इट मैन. हमने लास्ट टाइम इनको 4-1 हराया था अगस्त में, आई थिंक लास्ट टाइम 4-1 था, राइट? करेक्ट. La Liga. La Liga में, exactly. And by the way, even Real Madrid, like we say that they have a मतलब कहीं ना कहीं वो ये कॉन्फिडेंस अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड दिखता है, जो बार्सा अगेंस्ट सोसिएडाड दिख रहा है. निश्चित बोले 3-1, पृथ्वी बोले 4-2 फाइनल. भाई इंटरसिटी के साथ तो भाई मुश्किल हो गई थी. आई नो यू डिडंट एक्सपेक्ट, बट जस्ट आफ्टर द वर्ल्ड कप कहीं ना कहीं भाई यू वुड से दैट इट वाज अ वन ऑफ, राइट? प्रीटी श्योर. हाँ, probably थोड़ा सा और रोटेशन भी हुई थी शायद, जहाँ तक मुझे याद है. उस टीम में बहुत रोटेशन थी.
बहुत नहीं थी, बहुत रोटेशन अगले वाले गेम में थी सोएटा के अगेंस्ट, उस वाले में फिर भी खेल रहे थे फर्स्ट टीम प्लेस, तभी मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। वो जो 3-3 गया बंदे ने, जो उसने हैट्रिक मारी थी, मतलब अनबिलीवेबल था यार। तो गिल मंजानो है रेफरी आज, इनसे होप करते हैं कि ये मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा तो मुझे रेड कार्ड ना दे दे, तो लेट्स होप। इंटरेस्टिंग भाई, रेफरीज आज के दिन में रेफरी सबसे इंपॉर्टेंट है व्यक्ति इन पिच। बट भाई साग्निक, थैंक्स फॉर सेइंग दैट। और मैं अभी भी रियलाइज किया भाई, भाई करीबन 350 लोग देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर बीइंग हियर अगेन, डू स्टिक अराउंड टिल द एंड। हम और भी थोड़ा लेने वाले क्वेश्चंस एंड कमेंट्स एज मच एज वी कैन, लेकिन लाइक कर दीजिए सब लोग। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ भाई, I think around 280 likes हुए. If we can get it up to maybe 325 likes at least, it'll be brilliant. And of course, everyone do consider subscribing to our channels as well as Zbai's channels. You might have not clicked on the subscribe button, so consider करिए absolutely यार. अनमोल दी बोल रहे Dembele is a goal player, don't sell him. He always creates new stuff. I think जावी के तो मतलब let's be honest, जावी likes him. जी भाई, I don't think वहां पर हम डिनाई कर सकते थोड़े क्वेश्चंस करेंगे लेकिन डिनाई तो नहीं कर सकते। आई थिंक he'll probably अंकित भाई, जावी आल्सो लाइक्स हेक्टर बेलेरिन, इसका क्या मतलब है, मतलब अरे भाई साहब, एनीवे यहाँ पर एक आई थिंक कमेंट आया था, इट्स अबाउट विटर। ओके, एज एन आई एम नॉट श्योर इफ आई वुड बी द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन हिम। जी भाई, एनी आइडिया? या विक्टर ओके, 17-year-old स्ट्राइकर, बहुत ही अच्छा स्ट्राइकर है, टेरिफिक ब्राजीलियन लीग के बहुत वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर्स कमिंग अप। 25 मिलियन की डील हो रही है, 25, मतलब दैट टेल्स यू कि भाई ये दिस इज वन ऑफ दोस लेवल्स ऑफ, प्रोबेबली कुड बी वन ऑफ दोस लेवल्स ऑफ विनीशियस रोड्रिगो वाले जनरेशन वाले प्लेयर्स में से हो सकते हैं Okay. ये। एंड बार्सा इज वांटिंग टू साइन हिम फॉर अराउंड 17 मिलियन यूरोस। डाउट ये है कि वो फर्स्ट टीम के लिए है कि वो बी के लिए है, एथलेटी के लिए है। आई थिंक ही इज गोना बी फॉर बार्सा एथलेटी। अच्छा प्लेयर है। अभी जस्ट रिसेंटली हमने अर्जेंटाइन स्ट्राइकर को लुकस रोमेरो, क्या नाम है, रोमेरो, हाँ लुकस, भाई क्या हो रहा है मुझे भाई, अभी सो के उठा, मुझे लग रहा है मेरा दिमाग पैक है। कोई नहीं तो मतलब वही है ना, मतलब एट द एंड ऑफ द उसको डे हमने साइन किया, ही इज स्काउटिंग तो गुड। चल रही है, स्काउटिंग इज ऑन फॉर हाँ हाँ हाँ, बार्सा स्काउटिंग एंड चल दैट्स रही द है, गुड बार्सा पार्ट। लगी हुई है, मतलब साउथ अमेरिकन मार्केट में, लाइक वी हैव ऑलवेज बीन देयर। हमने बड़े बड़े बहुत धुरंधर प्लेयर्स को साइन किया था, प्लेयर्स जो एकदम लेजेंड्स बने थे, लाइक येरीमीना, मार्लॉन सैंटोस, जो बहुत सक्सेसफुल बने। एंड आई होप पीपल आर सेंसिंग द सार्काज्म इन माय टोन। रोमान, हाँ लुकास रोमान, थैंक यू। तो भाई अब कर जब रहे हैं। मीना आया था ना, आई थॉट भाई साहब मतलब क्या आ गया सेंटर हाफ भाई। और मतलब क्या आ अगेन, गया। लेकिन जब करता है ना बंदा वो छा जाता है, लेकिन वही है, एक मैच 10 मैचेस में फिर इंजर्ड रहता है आधा आधा समय। येरी मीना वाज द रीजन हमने इनविंसिबल्स नहीं पाया अंकित भाई। अब सोचो मैं कितना खुन्नस रखता हूँ उस हरामखोर से, मतलब साला, कम ऑन मैन। उसकी उसकी उसका नाम येरी इसलिए रखा गया बिकॉज उसकी मम्मी टॉम एंड जेरी की फैन थी, तो वो जेरी जेरी की वजह से उसका नाम येरी रख दिया गया। तो मतलब आप देख रहे हो, द रीजन वी कुड नॉट कंप्लीट दैट इनविंसिबल सीजन इन द लास्ट गेम वाज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बैक पास जो येरी मीना डर के फेंक दिया, एंड दैट गाय स्कोर्ड। आई थिंक बेतीस थी 5-4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। भाई आई वो रिमेंबर ही वाज, वो हाईलाइट में बंदा था वो, इतना मुझे डेफिनेटली याद है कि ही वाज इन द हाईलाइट फॉर द रॉन्ग रीजंस, पुट इट दैट वे। बट लगा तो था यार, मतलब ऑनेस्टली ये यार टोरे, आई थिंक ही वाज प्लेड, आई थिंक वन ऑफ दीस मैचेस रिसेंटली उसने खेला था इन द सेंट्रल मिडफील्ड। गुड। लेकिन वो ये, ही इज मोर ऑफ अ स्क्वाड प्लेयर राइट। आई डोंट थिंक इट बी फेयर टू आस्क हिम टू स्टार्ट राइट नाउ, टू बी ऑनेस्ट टुनाइट। आई थिंक इट बी टू मच। बट लेट्स सी, और थोड़े से कमेंट ले लेते जी भाई अगेन। लेट मी नो व्हेन यू हैव टू गो ब्रो। मैं थोड़े से कमेंट्स लूंगा। बट ठीक है। PSG are actively trying to seal the signing of Lyon prospect 19-year-old Ryan Cherky, okay, to replace Sarabia। भाई एक तो Sarabia Wolves लेकर आ गई है, मैं तो उस पर ही थोड़ा सा सरप्राइज था, to be honest। मतलब रांचोकी इज गुड। चिरकी को मैं फॉलो कर रहा हूँ, मुझे वो बंदे का ना एटीट्यूड बड़ा ही वो लगता है, ऐसा लगता है कि मतलब बंदा कुछ छाट कुछ उखाड़ा नहीं है, ज़्लाटान का एटीट्यूड पेला हुआ है, मतलब आई लाइक इट, मतलब थोड़ा सा बोल्ड है वो बंदा। एंड आई थिंक व्हेन ही स्कोर्स ही इज लाइक सेलिब्रेटिंग लाइक विद ओवर पैशन एंड स्टफ, सो उसकी ठीक है, टैलेंट है, अच्छा टैलेंट है, ही हैज बीन डूइंग वेरी गुड। काफी पेसी है, काफी अच्छा ट्रिकस्टर है, यू कुड से कि सस्ता एंटोनी काइंड, बट प्रोबब्ली थोड़ा सा ज्यादा डिमेंशंस हैं उसमें। तो फॉर पीएसजी इट वुड बी वेरी गुड, बट देखो।
पता Yeah, नहीं बिल्कुल. exactly. और भाई, I know Z भाई also has to go in a couple of minutes. I will stay along few more minutes. People to stick around. I will take few comments. I know काफी मैंने स्टार करके रखे. क्योंकि जो बारसा और रियल के नहीं थे वो मैं लूंगा towards the end. लेकिन यहाँ पर before going Z भाई, I know आज न्यू कासल one foot in the in the final. कौन बताया था यार, न्यू कासल भाई will be winning a trophy possibly. लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड obviously is there. तो क्या लगता है, मैनचेस्टर यूनाइटेड should win right against Nottingham? नॉटिंघम के अगेंस्ट दे शुड विन, बट बड़ी बड़ी बकवास बात है यार ये, मतलब सेमीफाइनल आप 2 लेग में करा रहे हो यार अंकित भाई, मतलब क्या वो वेस्ट है हमेशा यार, का ही है इतना और वो लंबा। टीवी में वापस नहीं आ रहा, इफ आई एम नॉट हाँ नहीं आ रहे भाई साहब, वही तो मतलब कल रॉन्ग. आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो। न्यूकासल ने तो पहला लेग जीत लिया 1-0, अभी सेकंड लेग भी है, फिर मतलब थोड़ा सा मुझे फालतू लगा वो जो रिप्ले हुआ था ना वुल्व्स और लिवरपूल वाला, वो पूरा पूरा रिडेंडेंट गेम था, मतलब क्या ही शिट हाउसरी हुई है, यूनाइटेड आज जीतेगी। कैमरा एंगल क्या ही तो बोले. बट एनीवे, ऑलवेज गुड टू सी यू जी भाई. और जी भाई, रियल मैड्रिड बीटिंग एटलेटिको मैड्रिड अगेन, प्रीटी श्योर. इस बारे में मैं बात नहीं कर पाया, मुझे बात करना था, आई वांटेड टू से समथिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब आई हैव नॉट सीन अ मोर sane fan than Dhenuka who can speak as bravely as she did about Real Madrid, क्योंकि एब्सोल्युटली. रियल मैड्रिड के फैंस अक्सर वो अपने जो गलतियां हैं या अपने शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको नहीं देखते हैं, वो 14 चैंपियंस लीग चिपका देते हैं बिफोर दे कैन इवन से एनीथिंग, ठीक है। बट एब्सोल्युटली. करंट वाली जो सिचुएशन को धेनुका ने जो बोला ना, वाज जस्ट लाइक भाई यार रियली में दे आर फैंस लाइक दिस जो ऐसा समझते हैं, एंड मैं उसका रीजन हीट भाई बताऊं भी जब क्विकली जी कमेंट भाई, करते क्योंकि हैं। आपको याद है हाँ तो आप गैलेक्टिकोस ऑलवेज यू एसोसिएट विद रियल मैड्रिड. आई वुड एब्सोल्युटली लाइक टू से अ बिग स्टेटमेंट यार, जो मिड 2000s और अर्ली 2000s थे ना, आई थिंक रियल मैड्रिड मैसिवली अंडर अचीव्ड. मैसिवली अंडर अचीव्ड. आई थिंक उनको एब्सोल्युटली बहुत ज्यादा करना चाहिए था. और उस समय मतलब इवन आई वुड से दैट मैं नया नया फैन बना था, लाइक ओके वाओ एज इन गैलेक्टिकोस मैन. तो लिटरली हर एक गेम फॉलो करना. तो आई थिंक देयर हैज बीन अ सर्टेन सेट ऑफ इयर्स जो हमने देखा है फुटबॉल, वेयर रियल मैड्रिड हैड दैट, डिस्पाइट दैट वो जीत नहीं पाए जो कर सकते थे. तो समवेयर ऑन द लाइन रियल मैड्रिड अगेन वही, आप थिंग्स लुक गुड ऑन पेपर जैसे आपने बोला, बट देयर आर प्रॉब्लम्स जो चलते हैं रियल मैड्रिड में एवरी, वो एक फेज आता है. आई थिंक इसलिए मैंने बात किया ना, वेयर इट्स दैट फेज ऑफ बारसा और रियल मैड्रिड का वो फेज वापस आ रहा है कि नहीं. तो आई डोंट नो, मे बी इट्स अ गुड मोमेंट फॉर बार्सिलोना टू कैच इन. लेकिन वही है, मनी टॉक्स एट द एंड ऑफ द डे. या या नहीं, बट बिल्कुल। सो थैंक एब्सोल्युटली यू ब्रिलियंट जी भाई, अंकित ऑलवेज भाई। भाई, एवरीवन. अगेन अगेन बाय चांस आप लोग नहीं सब्सक्राइब किया, बाय चांस जी भाई, लेट हिम गेट टू 2 लाख यार वेरी सून होपफुली. बट जी भाई, बात करेंगे, ऑल द बेस्ट फॉर टुनाइट. लेकिन बहुत होपफुली शुक्रिया। और 6 दिन है और ट्रांसफर्स कर दे बर्ली, और देन वी विल ना प्रॉब्ली अरे स्पीक थम जाओ। बिफोर यूरोपा लीग, चैंपियंस लीग एंड ऑल दैट. अरे कंग्रेचुलेशंस आपको फॉर योर साइनिंग्स अंकित भाई, एंड फॉर अ ग्रेट मैनेजमेंट हु डजंट स्टॉप स्पेंडिंग। आई रियली होप कि साइनिंग्स आपको बहुत बैन हुई है वैन ओवर द कुछ ना ईयर, दे लगे, शुड बट वर्क. दे शुड वर्क। ग्राहम पॉटर यहाँ पे बीच में अपने कोने रूम में ना, वो कोना देखते हो, वहां कोने में ग्राहम पॉटर ऐसे रात में बैठा होगा, अरे भाई क्या हो रहा है। तो लेट्स होप दैट ही डज कोई नहीं. वेरी गुड यार। चलो चलो ठीक है चलो, गाइस, टेक केयर, बहुत बहुत ऑल द शुक्रिया। बेस्ट. जरूर से लाइक कर दे स्ट्रीम को इफ यू एंजॉयिंग दिस, एंड अंकित भाई के चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर ले गाइस, एंड मिलता हूं मैं आप लोगों से सून यार, ठीक है। गुड नाइट एब्सोल्युटली, सी यू अंकित सून. भाई, टेक केयर, पीस आउट यार। बाय जी भाई. ओके गाइज, आई टेक अ फ्यू मोर कमेंट्स. यहाँ पर मैं स्टार करके रखा हूँ. यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ दैट. ओके, यहाँ पर पीपल आर आस्किंग. ओके, यार ले लेते भाई पहले. ला लीगा इन्फॉर्म बारसा दैट दे कांट रीच. हाँ, ये हमने ले लिया था. अगेन उसका आई थिंक सोल्यूशन यही होगा अभी के लिए. आई थिंक ही विल बी पार्ट ऑफ द यूथ, बट अगेन एट द एंड ऑफ द सीजन आई थिंक दे विल डू द ट्रांजिशन. और कहीं ना कहीं मुझे लगता है आउटगोइंग्स पर भी डिपेंड है. तो इफ दे आर एबल टू रिलीज सम मनी इन टर्म्स ऑफ सैलरी और रीनेगोशिएट करे, आई थिंक दे विल बी एबल टू फिक्स इट. आई थिंक ये वॉच द स्पेस में आता है एब्सोल्युटली फॉर नाउ. टर्स्टेगन भाई, टर्स्टेगन का जो फॉर्म है ना, मतलब सब लोग बोलिए यार चैट में, टर्स्टेगन, निक पोप, या कौन बोलूंगा भाई, हु इज ऑन फॉर्म, कौन सा है बेस्ट गोलकीपर इन द वर्ल्ड एज थिंग्स स्टैंड. बेस्ट गोलकीपर इन द वर्ल्ड ऑन फॉर्म कौन है इन टर्म्स ऑफ क्लब फॉर्म. भाई जो निक पोप ने किया था ना कल रात को, ही नहीं भाई, फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स कर रहा है. आई थिंक इन न्यूकासल इट्स क्रेजी. बट आई वुड लाइक टू से भाई, जो टीबो कोटवा का सीजन था लास्ट सीजन, Ter Stegen is coming to his best form actually for Barcelona. I don't know if you agree. Alonso CDM position, नहीं, I don't agree with that. मतलब thanks for actually even mentioning Alonso यार, बहुत लोग Alonso को mention ही नहीं करते. But the reason being that मैं नहीं बोलूँगा क्यों, because आप देखो बुस्केट्स के पास स्पेस नहीं है, आई एग्री टोटली. लेकिन अलोंसो बहुत ही लेफ्ट फुटेड है. एक चीज तो ये है,
प्लस वो सीडीएम खेला नहीं है, प्लस एक ट्रांजिशन में उसको जो टर्न होता है ना, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट हिम टू बेसिकली रीड दैट पास ऑन अ टर्न, वो ब्लाइंड टर्न करता है बहुत बार, तो आई डोंट थिंक इट विल वर्क एट ऑल। और रीजन भी नहीं है यार, मतलब बुस्केट्स एज मच एज हम क्रिटिसाइज करो, एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक बाय समर प्रीटी श्योर यहाँ पर बारसा रिलीज करने वाली है। आप लोग बोलिए किसको रिलीज करना है भाई? इज इट गोइंग टू बी सर्जी रोबर्टो, इज इट गोइंग टू बी आंसू फाटी, इज इट गोइंग टू बी रफीनिया? कौन होगा दैट बारसा विल रिलीज? और आप बोलोगे नहीं यार यूरोपा लीग जीत जाओ, कुछ पैसे बनाएंगे एंड देन मे बी विल बाय अ सीडीएम। आई थिंक सीडीएम आने वाला है बारसा में, एंड प्रॉब्ली इज गोइंग टू बी जुबीमेंडी एज थिंग्स स्टैंड, बिकॉज आर्सेनल ट्राई कर रही है, लेकिन आई स्टिल प्रेफर, आई बिलीव दैट वो प्रेफर कर रहा है बार्सिलोना एज पर द रिपोर्ट्स। प्लीज रैंक टॉप 5 क्लब्स ऑफ ऑल टाइम। ओ वाओ, दिस इज इंटरेस्टिंग। अगेन मैं अगर मिस कर दूं भाई, अपॉलॉजीज पहले ही बोल रहा हूँ। अगेन यहाँ पर मैं न्यूट्रल ओपिनियन रखना चाहूंगा फॉर हैविंग सीन फुटबॉल राइट फ्रॉम 1999, चैंपियंस लीग फुटबॉल देख रहा हूँ यार मैं। तो इन माय ओपिनियन, मतलब विदाउट रैंकिंग देम फ्रॉम 1 to 5, मैं जनरली टॉप 5 क्लब्स बोलूंगा जो मेरे ख्याल से हैव बीन लाइक इन द लास्ट 25 years एटलीस्ट, मैं बोल सकता हूँ जो मैंने देखा है। इन माय पर्सनल ओपिनियन 100% I would put Real Madrid right up there. Barcelona, yeah, रहना पड़ेगा as much as मैं नहीं चाहूंगा। I would like to say again, यहाँ पर आप देख सकते हो रिजल्ट्स, आप देख सकते हो the way that they play football, the way that they have been successful. Success also determines a lot. तो I know आप लोग बोलोगे मतलब come on, of all time तो डिफरेंट आंसर होगा, लेकिन मैं लास्ट 25 years का बोल रहा हूँ, बिकॉज लास्ट 25 years में मैंने देखा है, नॉट बिकॉज आप लोग सब लोग बोल सकते हो कि यार हिस्ट्री चेल्सी की 25 years की है, नहीं, पहले भी है। आप लोग हुए माई सीजन 1 देखिए, उसके लिए चेक आउट द प्लेलिस्ट एब्सोल्युटली, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा सबको, इट्स एब्सोल्युटली फ्री, थिंक अबाउट सब्सक्रिप्शन। लेकिन मैं बोलूंगा डेफिनेटली मैनचेस्टर यूनाइटेड इज राइट ऑफ देयर, एब्सोल्युटली। I would also like to put my club Chelsea there in the last 25 years. Yes, मैं बोलना चाहूंगा, और I would put Bayern Munich। तो लास्ट 25 years में बोल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट 25 years में यूवेंटस, एसी मिलान, ऑब्वियसली मैं बोलना चाहूंगा दैट एसी मिलान यूवेंटस माइट बी देयर, लेकिन यूवेंटस क्यों नहीं? फर्स्ट कैल्चियोपोली, और अभी जो हुआ है उसके कारण नहीं है। एसी मिलान एज मच एज मैं बोलूंगा कि डेफिनेटली दे आर देयर इन हिस्ट्री, ऑल टाइम बोलूं तो डेफिनेटली एसी मिलान will probably take the place of Chelsea in that top 5 in my opinion, right? लेकिन आई थिंक रियलिटी ये है कि उतना डिप जो हुआ है ना लास्ट 10 years में, डिस्पाइट विनिंग द स्कूडेटो लास्ट सीजन, मैं नहीं बोलूंगा दे आर देयर। यहाँ पर चेल्सी क्यों डाला है मतलब लास्ट 25 years में? बिकॉज फर्स्टली आई थिंक सम ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स ऑफ द वर्ल्ड चेल्सी को मैनेज की है। चेल्सी ने रीबिल्ड किया प्रोजेक्ट ट्वाइस इन दैट 25 years प्रोजेक्ट, और उसमें बेसिकली वी हैव लिटरली वन एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ। बायर्न म्यूनिख, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, तो भाई नीडलेस टू से। लिवरपूल फैंस माइट से लिवरपूल, लेकिन लीग इतनी बार नहीं जीता लिवरपूल। मैन सिटी, दे हैव वन द लीग लॉट ऑफ टाइम्स, लेकिन चैंपियंस लीग नहीं जीता। तो रीजन है मेरे, कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट दिस इज जस्ट माय पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द लास्ट 25 years। आर्सेनल अगेन दे हैव नॉट वन इनफ फॉर मी। राइट फॉर आर्सेनल, भाई राइट फॉर आर्सेनल एज थिंग्स स्टैंड आई डाउट इट। और मेरा पर्सनल ओपिनियन, एज मच एज आर्सेनल माइट विन द लीग और वो शायद फेवरेट्स हो इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर द टाइम बिंग, और आई नो दैट दे आर प्लेइंग वेरी गुड फुटबॉल भी, वहां पर उनको चाहिए एक सॉलिड प्लेयर, कैप्टन लाइक राइस, और भी बेटर हो। लेकिन आई हैव गॉन सेइंग अगेन एंड अगेन, पृथ्वी हम वॉच अलोंग्स करते हैं, डू जॉइन अस फॉर न्यूट्रल वॉच अलोंग्स, ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस हमारा दूसरा चैनल है, इट इज लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन ऑलवेज। और आपका ऑलमाइटी ब्लूज एफसी जो आप देख रहे हो ऑलरेडी, तो यहाँ पर हमने कवर किया बहुत बार दैट ग्रानिट जाका जो करते हैं अलॉन्ग विद जिनचेंको, एक बहुत ही मतलब ट्यूनिंग उन दोनों के बीच में। तो आई डोंट सी ग्रानिट जाका ड्रॉपिंग फ्रॉम द 11, दे नीड अ स्क्वाड प्लेयर, ये जरूर बोलता हूँ। दैट माइट बी वन ऑफ द रीजन जिसके लिए वो जा रहे जुबीमेंडी, क्योंकि जुबीमेंडी आई थिंक कंसिडरिंग वो प्रीमियर लीग मूव हो सकते हैं, तो एक बहाना मिल जाएगा कि चलो आप बेड इन हो, मे बी विल स्टार्ट इन 6 months ऑफ टाइम, वो बोल सकते हैं। बट राइस वुड एक्सपेक्ट टू स्टार्ट, पार्टे और जाका ड्रॉप नहीं हो रहा अभी के लिए। तो आई थिंक दे नीड समवन हु ओके टू बी रोटेटेड। आई नो उन्होंने ट्रोसार्ड को भी साइन किया, बट मैनेजिंग सच अ बिग स्क्वाड विल बी डिफिकल्ट। मेरे लिए द स्मॉलेस्ट स्क्वाड जो था ना आर्सेनल का, वो वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज अभी तक, इन माय पर्सनल ओपिनियन। ओके लेट्स सी और क्या बोल रहे हो आप लोग। ओके, बुस्केट्स, रोबर्टो, बेलेरिन विल गो इफ फाटी डजंट परफॉर्म, ही विल गो टू बेलेरिन। आई कैन हियर एब्सोल्युटली मयंक, मुझे लग रहा है बेलेरिन तो रिप्लेस आपको करना ही है, लेकिन रोबर्टो और बेलेरिन दोनों जाएंगे, आई डाउट इट, एज मच एज बार्सा फैन चाहेंगे, आई डाउट कि दोनों जाएंगे, आई थिंक एक ही जाएगा। अर्पिता बोल रहे हैं रियल, बारसा, एसी मिलान, बायर्न यूनाइटेड। हाँ, एसी मिलान और स्लैश चेल्सी मैं बोलूंगा अर्पिता, दोनों ही मेरे क्लब्स है तो डिफिकल्ट, लेकिन हाँ इट्स डिफिकल्ट टू पुट बोथ ऑफ देम इन दैट ब्रैकेट। हाँ, बहुत लोग बोलेंगे आप यूनाइटेड भी डाले हो कैसे, लेकिन यूनाइटेड जो 1999 से
2013 तक जो थी ना सक्सेस, वो बहुत देखा है यूनाइटेड ने. तो आई थिंक इट इज लॉन्गर. AC Milan also because of the same reasons you can put maybe, but वही AC Milan, United और Chelsea में से 2 टीम डालूंगा अर्पिता. So I think in इस पीरियड में Chelsea has been just about or a little bit I think more successful than a United in my personal opinion from 1989 जो मैंने देखा. लेकिन all time में it would be what अर्पिता ने बोला. I agree with this comment actually. All time के लिए तो भाई डेम्बेले और रफीनिया वन ऑफ देम. मैं बोलता हूँ रफीनिया उन्होंने यूज नहीं किया टोटली. रफीनिया हैज बिन इन एंड आउट ऑफ द टीम जब वो खेले एज राइट विंगर. आई थिंक उनका पोजीशन इज नॉट लेफ्ट विंगर, उनका पोजीशन इज राइट विंगर. उनको जब रन ऑफ गेम्स मिलेगा ऑन द राइट विंग, जो आई नो पॉसिबल नहीं है आज के दिन में, आई थिंक ही विल डू वेल. और हो सकता है भले अगेन 6 महीनों में आप जज मत करिए यार. ही इज मूव टू न्यू कंट्री, रिमेंबर एज मच एज उनका ड्रीम था, ही इज मूव टू न्यू कंट्री. इतना भी बुरा नहीं किए, ही इज डन डिसेंटली बट नॉट एज मच एज व्हाट यू एक्सपेक्ट. फरहान टोरेस ड्रॉप किए, जरूर से बोलूंगा वीरेंद्र. तो फरहान टोरेस शायद बेचे जाए इन माय ओपिनियन. थोड़े से एसेट भी है तो यू माइट गेट सम मनी फ्रॉम देयर. जॉर्डी अल्बा, हाँ वो तो ऐसे भी आई थिंक इट्स प्रीटी ओल्ड और यू हैव 2 लेफ्ट बैक्स ऑलरेडी. तो बुस्केट्स, रोबर्टो हैड टू गो, फेयर इनफ. जाबिर कैसे हो भाई, नाइस टू सी यू. निंजा गेमिंग बोल रहे एसी मिलान, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, मैन यूनाइटेड, बायर्न. भाई कोई भी चेल्सी को डाला ही नहीं. अगेन ऑल टाइम में एग्री चेल्सी नहीं होनी चाहिए भाई. एटलीस्ट इन द लास्ट 3 डेकेड्स मैं बोलूंगा चेल्सी होनी चाहिए माय पर्सनल ओपिनियन. लेकिन एसी मिलान मेरी अगेन आई एम अ fan of AC Milan as well. I know first fan of Chelsea, but definitely AC Milan also has to be there. You can argue. Chelsea clear of AC Milan. AC Milan didn't play in UCL for 6 years straight. Exactly. इसलिए मैंने शायद Chelsea को डाला है. थोड़ा सा recency bias है, but last 25 years में I still feel that Chelsea थोड़ा सा edge करती है than an AC Milan. I just about हाँ अगर Chelsea second Champions League नहीं जीतती, Club World Cup नहीं जीतती, then I would have said AC Milan still. लेकिन because of that I'm going वही है AC Milan, United और Chelsea में 2 मैंने pick किया, बाकी तो they pick themselves. वाई बिग टीम नॉट स्काउट लीग ऑफ प्लेयर्स? नहीं करते यार, करते हैं. हमने एक्चुअली याद है तो भाई हमने एक फ्री एजेंट लिया था लास्ट समर वाज इट, मलंग सार अंडर लैम्पार्ड हमने लिया था. देन ऑफ कोर्स बैक इन द डे लीगा से ही आए थे भाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंगोलो कांटे ऑफ द लाइक्स. देन बेसिकली यू हैड पेटर चेक, हमने बैक इन द डे हमने लिया था. अभी रिसेंटली ऑब्वियसली वी हैव टेकन बाडियाशिले. तो ऐसा नहीं करते काफी. अभी मालो गुस्तो, थिंग्स आर हैपनिंग. होपफुली बिटवीन चेल्सी और लियोन टर्म्स हो जाए सेकंड बिड में और वो मान जाए और मालागस तो कम्स. तो ऐसा नहीं कि नहीं करते, बट बिकॉज बहुत सारे प्लेयर ऐसे भी जो आकर नहीं किया. स्पेशली न्यूकासल वाज अ टीम. न्यूकासल आप देखो, देयर वाज एन एरा जहां पर लिटरली एवरी सेकंड फॉरेनर जो आता था न्यूकासल में लीग से ही आता था और फ्लॉप हो गया. देयर वाज अ एरा. तो कहीं ना कहीं देयर इज अ हेजिटेशन. जैसे अभी जर्मन प्लेयर्स के लिए जर्मन लीग से थोड़ा सा, बुंडेसलीगा से थोड़ा सा हेजिटेशन आफ्टर टीमो वर्नर फेलिंग in the league, not in the cups, but in the league. When do you think Ansu will regain his proper form? As you can see, his glimpses of brilliance. Akshat, सेम चीज मैं बोलूंगा जैसे मैंने बोला अबाउट रफीनिया. आंसू फाटी इज अ प्लेयर यू हैव, लेकिन उसको 90 मिनट्स प्रूव करना पड़ेगा जब ही इज गिवन दोस चांसेस. प्रॉब्लम है, आई नो लास्ट मैच उसने स्ट्राइकर खेला था, बट फर्स्टली इज नॉट अ स्ट्राइकर. सेकंडली ही इज नॉट अ बैकअप टू लेवेंडोव्स्की. वो है बैकअप अभी के लिए फॉर फरहान टोरेस / रफीनिया. और आई फील कि उसको स्टार्ट देना चाहिए टू सी कि वो 90 मिनट्स खेल सकता है कि नहीं. मे बी टुनाइट, आई डोंट नो. आप लोग बोलिए इफ यू लाइक टू स्टार्ट हिम टुनाइट. भाई एवरीवन, अगेन जैसे अर्पिता बोल रहे, थैंक्स अ लॉट फॉर सेइंग दैट. एवरीवन कंसीडर सब्सक्राइबिंग. यस, इट इज अ चेल्सी फैन and a Milan fan talking about a lot of football. जिसने देखा है football end to end. I'm a Dutch fan or Indian fan internationally भाई. For people who do not know, a lot of content comes. Check out हमारे playlist. हमारे पास बहुत सारे different variety of content है. So consider subscribing absolutely. We try and cover all top 5 leagues. UCL is coming soon. UEL is coming soon. हम दोनों cover करते हैं end to end. You all know that, जो लोग जानते हैं channel पे. Absolutely. Worried for Julian Alvarez and Rafinha. भाई अल्वारेस तो चलेगा मेरे ख्याल से. आई थिंक याद रखिए, यहाँ पर किसी ने कमेंट किया था, सॉरी अगेन मैंने कमेंट दिया तो, लेकिन बर्नार्डो सिल्वा इवेंचुअली विल मूव. ठीक है, तो विद हिम मूविंग इवेंचुअली मुझे लगता है हुलियन अल्वारेस विल गेट अ स्टार्टिंग स्पॉट. मारे स्टार्टिंग स्पॉट नहीं बनाए एज मच एज उनका फॉर्म बहुत अच्छा है. तो हुलियन अल्वारेस विल डू वेल इन मैन सिटी इन द लॉन्ग रन, इन माय ओपिनियन. वो खेलेंगे. रिमेंबर पेप हैज ट्राइड 4-4-2 आल्सो एट टाइम्स. उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, तो ही विल डू वेल. बहुत यंग है अभी. रफीनिया वही है, अगर डेम्बेले एक्सटेंड करते हैं एंड स्टेज देयर फॉर लॉन्ग और जावी उनको बैक कर रहे पहले, तो रफीनिया हैज अ प्रॉब्लम. आई कैन हियर दैट, लेकिन वेट टिल द समर. भाई शाम, नाइस टू सी यू भाई. क्या हाल है? नाइस टू सी यू ऑलवेज भाई. ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज मैड्रिड डर्बी. यार क्या बोलते हो, मैड्रिड डर्बी में क्या होगा?
A day without Chelsea transfer news is boring. नहीं है, ट्रांसफर न्यूज यही है चेल्सी की तो क्विकली. आई नो हम बारसा, रियल मैड्रिड, एटलेटिको मैड्रिड और सोसिएडाड ज्यादा बात की आज, लेकिन गौरव ऑलवेज गुड टू सी यू भाई. मतलब चेल्सी का यही है दैट कैसेडो का 100 मिलियन पाउंड मांगा है ब्राइटन ने. 100 मिलियन पाउंड, 100 मिलियन यूरोज नहीं. वो भी 100 मिलियन पाउंड इन अ शॉट मांगा है, नॉट इवन एड ऑन्स मिला के. दैट्स टू मच. ठीक है, काइसेडो इज अ गुड प्लेयर बट इज नोवेयर क्लोज टू 100 मिलियन पाउंड. ठीक है, एंजो फर्नांडिस भी 100 मिलियन पाउंड नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट देखते हैं भाई क्या होता है. बेनफिका मीनवाइल हैज मेड इट क्लियर उनके सोर्सेस से कि भाई हमें चाहिए वन शॉट में वो क्लॉज तोड़ना, दैट इज 106 मिलियन का, और वो हो सकता है चेल्सी नहीं करे. चेल्सी का 2 इंस्टॉलमेंट्स का ऑफर होने वाला है विच इज क्लोज टू दैट, विच इज नॉट बी इनफ फॉर मी. लेकिन देखते हैं, होपफुली काइसेडो के लिए कम कर दे भाई. ऐसे भी वी हैव पेड ब्राइटन इनफ फॉर कुकुरेया, कम ऑन. मालो गस्तो वॉच दिस स्पेस गौरव, मुझे लगता है दैट माइट जस्ट हैपन लेट, क्योंकि वी माइट एक्चुअली एंड अप फेलिंग इन द सेंट्रल मिडफील्डर एज मच एज हमें वो ज्यादा चाहिए. टोनी बहुत अच्छा है. प्रॉब्लम विद टोनी इज आई थिंक प्रिटी श्योर यहाँ पर बहुत सारे क्लब्स ट्राई करते टोनी के लिए जनवरी विंडो में, एज मच एज ही इज अ ब्रेंटफोर्ड मैन टोटली. द रीजन बहुत सारे क्लब्स हेजिटेंट हुए टू पुट इन दैट बिड और टेस्ट ब्रेंटफोर्ड मेरे ख्याल से ये है बिकॉज टोनी बेटिंग वाले एलिगेशंस जो चल रहे थे, बहुत सारे एलिगेशंस थे, तो कहीं ना कहीं क्लब डोंट वांट दैट काइंड ऑफ एक बैगेज मिड सीजन. ठीक है, हो सकता है समर में आए, बट डेफिनेटली आई कैन सी हिम कमिंग टू अ बिग क्लब इन द प्रीमियर लीग अपार्ट फ्रॉम ब्रेंटफोर्ड. वी बॉट हजार्ड, या ऑफ कोर्स हजार्ड कैसे भाई, एस्पिलिक्वेटा गौरव, एब्सोल्युटली. What are your predicts? भाई यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड विल विन. देवेश टेंशन ले लेने का. आई नो नॉटिंघम फॉरेस्ट आर डूइंग सम क्रेजी ट्रांसफर्स, वो भी पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है, बट एट द सेम टाइम यार आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड को ये इससे बड़ा मौका नहीं मिलने वाला फॉर विनिंग अ कप अंडर एरिक टेन हाग अर्ली. सो एज मच एज न्यूकासल आर लुकिंग डिफेंसिवली बहुत सॉलिड, अटैकिंग वाइज न्यूकासल थोड़ा इश्यू है. आई नो एक ही लेग हुआ है उनका भी सेमीफाइनल में अगेंस्ट साउथहैम्पटन, बट 1-0 जोलिंटन हेल्पिंग, निक पोप हेल्पिंग, वहां पर इंटरेस्टिंग फाइनल होगा. आई एम सीइंग मैन यूनाइटेड गेटिंग थ्रू यार. फर्स्ट लेग है आज, आई नो. आई थिंक आई एम कॉलिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड जीत जाएगी. 2-0 विक्ट्री दे रहा हूं मैं तो मैनचेस्टर यूनाइटेड. आई डोंट थिंक इट विल बी अ ह्यूज विक्ट्री और टफ रहेगा, लेकिन 2-0 मैं बोल रहा हूँ क्योंकि नॉटिंघम फॉरेस्ट अच्छी टीम है, हमने खेला था रिसेंटली, ऑन फॉर्म भी है. ओके, हरी बोल रहे हैं when all the Chelsea injured players are back, will there be any dressing room issue? And if you're Potter, how will you solve that? Hari, nice to see you always, bro. Hari, हमने लास्ट 2 स्ट्रीम से वो डिस्कस किया इन डिटेल. तो दोस्त आई थिंक लास्ट 3 स्ट्रीम में से 2 में चेल्सी फोकस किया था, प्रीमियर लीग फोकस किया था एक्चुअली, ट्रांसफर्स के बारे में बात किया था. एंड आई डिस्कस द टैक्टिक्स ऑफ पॉटर, किन लोग को हमें बेचना चाहिए. एक था मेंबर्स एंड सब्सक्राइबर्स स्ट्रीम, जहां पर दे केम ऑन डिस्कॉर्ड एंड स्पोक टू मी लाइव, आप देख सकते हो, जहां पर उन्होंने भी अपनी थॉट्स शेयर किए. आई थिंक कहीं ना कहीं आई थिंक वी विल हैव टू सेल रूबन लॉफ्टस-चीक स्लैश गैलेगर, एक जन को सेल करना ही पड़ेगा अगर ऑफर आता है फॉर वन ऑफ देम. आई बिलीव सो. वी हैव टू लोन दाविद दात्रो फोफाना, जहां तक मुझे दिखता है. आई डोंट थिंक उसको मिनट्स मिलने वाले. वी माइट हैव टू लोन चुकुमेका, और हमने सेल करना है हकीम जियश. एज मच एज मैं चाहूँ कि हकीम जियश रहे, प्रोवाइडेड हम एक राइट बैक और सेंट्रल मिडफील्डर लाते हैं, आई थिंक विल बी गुड. हमने शायद शेयर किया था, इट्स अबाउट अ 27 मैन स्क्वाड, जो आई थिंक विद 5 सब्स्टिट्यूशंस, विद इतने सारे इंजरीज, आई थिंक इट्स फेयर इनफ. वो करेंगे चेल्सी. तो 1 प्लेयर एक्स्ट्रा फॉर ईच पोजीशन, और हर एक काइंड ऑफ पोजीशन, जैसे मिडफील्ड में एक एक्स्ट्रा मिडफील्डर, हर जगह एक एक्स्ट्रा गोलकीपर, एक एक्स्ट्रा डिफेंडर, एक एक्स्ट्रा फॉरवर्ड. तो दैट मेक्स अराउंड 26 टू 28 मैन स्क्वाड हो जाता है. आई थिंक दैट्स फेयर इनफ, हो जाएगा यार, मतलब इतना भी डिफिकल्ट नहीं है. बेंजेमा वाज फ्रॉम लियोन, एब्सोल्युटली. तो भाई फिलिप्स आल्सो विल स्टे देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. आई थिंक अभी तो इट्स टू अर्ली टू से दैट वो फ्लॉप है. डगलस लुइस नॉट टू बैड. डगलस लुइस के थोड़े से मैं ये जरूर बोलूंगा दैट आई डोंट नो, मतलब एज मच एज वो सिंगल पिवट में भी खेलता है गौरव, यू हैव अ पॉइंट, लेकिन आई थिंक टेम्परामेंटल इश्यूज है, ये जरूर बोलूंगा. बाय द वे डगलस लुइस के साथ पैकेज भी आता है फॉर पीपल हु नो यार, कपल आता है साथ में, पीपल हु फॉलो एस्टन विला. बट टीलेमंस नहीं यार, टीलेमंस डजंट वर्क. मतलब एज मच एज मैं लूंगा, उसको मना नहीं करूंगा, बट हमें चाहिए समवन हु इज डिफेंसिवली मोर सॉलिड, हु स्ट्रॉन्गर, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट कैन पास. टीलेमंस उल्टा है, तो दैट इज नॉट व्हाट वी वांट. सच में बोलो तो भाई मैं देख रहा हूँ अभी भी आर्सेनल हैव रिजेक्टेड एन अप्रोच फ्रॉम मोनाको टू साइन
Albert Sambi Lokonga on loan with Mikel Arteta unwilling to part with another midfielder after losing Mohamed Elneny to a long-term injury. Yeah, I agree. Why? ये correct है Arsenal द्वारा, because I don't think they have a lot of backup in midfield. Zinchenko can play there, by the way. Is it unfair for Serie A teams like AC Milan has to compete with Premier League lower table teams to sign a player because of finance? Unfair, I'm not sure about unfair, लेकिन I hear you why. देखिए, there are still players जो prefer करते हैं इटली जाना to go to Liga because of एक lifestyle. वो भी है, सच्चाई है, क्योंकि it's not easy to play in the relegation battle. तो वो भी कहीं ना कहीं है, बट एट द सेम टाइम एसी मिलान प्रेशर बहुत है यार, मिलान में प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो यू नीड टू पे टू काइंड ऑफ पुल दोस प्लेयर्स. तो आई अग्री वो होने वाला है फॉर द टाइमिंग, लेकिन ये मुझे जनरली लगता है मच एज यूवेंटस ने जो किया है कांड, उसके बावजूद मैं बोल रहा हूँ कि इटालियन फुटबॉल इज ऑन द राइज अगेन. आई रियली फील दैट ओवरऑल धीरे है, एज मच एज मैं एक्सपेक्ट करता नहीं है, लेकिन इज ऑन द राइज. फॉर्म तो बहुत ही गंदा है एसी मिलान को, तो अभी के लिए जनवरी विंडो में अभी रियली सरप्राइज अगर हम किसी को अट्रैक्ट करें, बिकॉज इट्स नापोलीज सीजन टू लूज, सच में बोले तो. Would you consider Pep's time at City successful if he fails to win Champions League with this squad? Ayan, there are two ways of looking at it. One is that has he created a legacy? 100% he has. City nahi, for the Premier League. So if I have to say, has Pep worked for the Premier League? I would say absolutely yes. Is he one of the greatest of all time Premier League managers? Already, yes. Irrespective. Lekin, if you're talking about Manchester City, particularly, so even Pep will agree if he misses out on the Champions League, which I think may not happen. वो जीतेगा, मतलब मैं चाहूंगा नहीं, मुझे लगता है he will win eventually in this year or next year, लेकिन देखते हैं. I feel that Pep अगर नहीं जीते will not be a failure, लेकिन I would not say overly successful either. लेकिन Premier League, don't get me wrong, he is a pioneer. जैसे Arsene Wenger or I think of course Sir Alex, Jose Mourinho. I think these are some of the Premier League managers that you would obviously remember from the last 30 years. I think Pep has to be there in that bracket, in that elite bracket, absolutely Premier League का. Douglas Lewis to Chelsea, नहीं यार, देखते हैं. Hopefully if we get someone it's okay, but is he a starter? Is he someone जो better करता है Chelsea starting 11 than say Kovacic? I don't think so. As much as I love Kovacic, I'm still saying Laimer तो Chelsea तो नहीं होने वाला ना. Laimer to Bayern Munich हो गया यार. I think he's going to Bayern Munich in the summer. हाँ, on loan अभी हो सकता है technically from Leipzig, लेकिन when he knows that he's going to Bayern Munich, वो क्यों ही तो आएगा यार Chelsea में, नहीं आने वाला है. नहीं, I don't agree with that. These are two different players altogether, लेकिन I will take him. Definitely. नहीं यार, Bakayoko, as per reports, Ajinkya, Chelsea are accepting, a bid. It is from Turkey, by the way. वो होने वाला है, चिल्लर में जाने वाला है, लेकिन जाने वाला है eventually. I think 3 million or something like that. Crazy deal. What a loss for Chelsea, यार, absolutely. इतना सैलरी भी लिया भाई चेल्सी. भाई डरेन, क्या हाल है भाई? कोई नहीं, ऑल द बेस्ट यार फॉर द एग्जाम्स. एब्सोल्युटली लव यू ब्रो. अगेन भाई याद रखिए आप लोग, वी आर मोनेटाइज, तो आपको करना है कमेंट्स, डेफिनेटली आप कर सकते हो प्रायोरिटाइज वाई सुपर चैट. यू कैन आल्सो बिकम अ मेंबर. देयर इज अ लॉट ऑफ मेंबर्स के पर्क्स. एट द सेम टाइम वी आर हैविंग मेंबर्स प्रेडिक्शन लीग, जिससे आप हो सकते हो एक विनर ऑफ अ प्रेडिक्शन लीग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन. वो हम करते हैं एवरी वीकेंड मोर लेस, एंड यू डू हैव सम मेंबर स्ट्रीम्स गोइंग ऑन. हम यू हैव लॉट ऑफ मेंबर इमोजीज है, चेकआउट करिए आप लोग. बिग अप टू डेरेन, आपके अपने मेंबर. एंजो भाई, आई नो एंजो कैसेडो का बात हो रहा है. आज थोड़ा सा हमने फोकस किया ऑन रियल मैड्रिड. एंजो टू, अगर चेल्सी नहीं होता, आई कैन सी हिम गोइंग टू रियल मैड्रिड एज वेल. अगर बेलिंगम जाता लिवरपूल, दैट माइट हैपन इन द समर, बट अभी के लिए नहीं. अभी के लिए आई सी दैट चेल्सी ट्राई करेगी, बट आई हैव अ वियर्ड फीलिंग कि बेंफिका अग्री नहीं करेगी, बिकॉज आई डोंट थिंक हम ऑफर करेंगे 106 million आउटराइट. हम करेंगे इन 2 इंस्टॉलमेंट, विच माइट नॉट बी इनफ. कहवाले, हाँ भाई मैं ट्राई कर रहा हूँ, एज मच एज कमेंट्स ले लूँ तो मैं ट्राई कर रहा हूँ. एब्सोल्युटली आई ट्राई एंड टेक एज मेनी कमेंट्स एज पॉसिबल. लाइक आई सेड, यू कैन ऑलवेज सुपर चैट टू प्रायोरिटाइज योर कमेंट्स अगर मैं मिस करता हूँ, बट आई स्टार अ लॉट ऑफ कमेंट्स व्हिच आर रेलेवेंट. बट अगेन, Laporte, Cancelo are among 5 names at Man City that could leave this summer, with the latter having not the best relationship with Pep Guardiola and his coaching staff. Okay, Laporte तो मुझे लग रहा है he will be available for sure. वो तो he is the 5th choice center back at this point in time. Not any sense to stay right now. 25 million for Ziyech, not enough.
एटलीस्ट 30 मिलियन आने चाहिए एटलीस्ट, गौरव. लेकिन आई कैन सी हिम गोइंग. चाहूंगा नहीं, लेकिन आई कैन सी हिम गोइंग. कमारा इंजर्ड था भाई, डेरेन लॉन्ग टर्म इंजरी थी, दैट्स अ प्रॉब्लम दैट कमारा नहीं गए. बट अगेन भाई, एवरीवन डू हिट दैट लाइक बटन, एब्सोल्युटली हेल्प्स. लाइक डेरेन बोल रहे भाई कितने, लेट्स ट्राई एंड गेट टू 400 लाइक्स बिफोर द स्ट्रीम एंड्स. कैन वी डू दैट इजीली? pretty sure we can. We are live from कितना 1.5 घंटे से लेके भाई. I hope everyone watching are subscribed to the channel. hit that subscribe button. आपको लॉगिन करके सब्सक्राइब करना है, उतना ही करना है. एट द प्रेस ऑफ अ बटन हो जाता है. बट डू नॉट फॉरगेट टू इवन हिट दैट बेल नोटिफिकेशन आइकन. भाई साहब, गुरुजी इन द हाउस. गुरुजी क्या हाल है भाई? गुरुजी आई वाज सीइंग आपने शायद मैसेज किया. लेट मी सी भाई. गुरुजी बिग अप यार. गुरुजी आई नो दैट यू बीन बिजी, बट होपफुली वी विल टॉक यार. बहुत सारे बातें करने यार. गुरुजी आप, मैं मैसेज करता हूँ आपको. वी लेट्स प्लान अ स्ट्रीम यार. विल प्लान. चलो, आई गॉट योर मैसेज. चलो, विल भाई गुरुजी विल बी कमिंग टू द चैनल वेरी सून. गुरुजी आई बी मैसेजिंग एंड विल सेट अप अ स्ट्रीम. बहुत बात करनी है यार. ट्रांसफर विंडो हो गया, व्हाट नॉट. एब्सोल्युटली. बिग अप टू आदित्य गुरु ज्ञान यार. बाई चांस आप लोगों को नहीं पता है तो भाई कम ऑन. मैकेनी टू चेल्सी यार. आज मैकेनी टू अदर, शायद कहाँ पे लिंक हो रहा था? आई थिंक आर्सेनल पे भी लिंक हो रहा था. आई थिंक मैंने देखा था एक पॉडकास्ट फ्रॉम फेबिशो रोमानो. आई फील कि मैकेनी might actually tend to agree if Chelsea goes. मुझे लगता है he might actually be that guy. But is that exactly जो Chelsea को चाहिए? In my personal opinion नहीं. McKennie is a great player, इंजन है, मस्त है, अप एंड डाउन करता है, एब्सोल्युटली बॉक्स में भी जाता है. प्रॉब्लम यहाँ पर है, ही इज नॉट अ, आई वुड नॉट एसोसिएट मैकेनी एज अ पासर. हमें चाहिए समवन जिसके पास है वो एक एरियल पास है, एक एक रजिस्टर भी नहीं बोलूंगा, समवेयर जो मे बी लाइक अ फ्रेंकी डियोंग काइंड ऑफ अ पर्सन, जो बॉक्स टू बॉक्स भी है, बट हु हैज अ गुड पासिंग एबिलिटी. आई नो इजी टू से फ्रेंकी डियोंग, लेकिन नॉट इजी टू गेट. वो रियलिटी है. कैसी, हाँ कैसी, रैबियो. अगेन हम लिंक हुए हैं दोनों दोनों के साथ में लास्ट 12-18 महीनों. हमें हमें पता है कैसी, स्पेशली रिसेंटली. अगेन कैसी को क्या मैं देखता हूँ, ही इज अ गुड बॉल प्लेयर, एब्सोल्युटली बेटर देन मेनी जो आप सोचते हो. लेकिन इज ही, मतलब दैट गाय जो पासिंग एबिलिटी रखता है? आई डोंट थिंक सो ही हैज दैट पासिंग एबिलिटी जो अपग्रेड करता है फ्रॉम से अ कोवाचिच. सो आई वुड स्टिल प्ले कोवाचिच. हाँ, एज अ स्क्वाड प्लेयर आई माइट हैव हिम. अगर हमें पता है कि समर में कांटे छोड़ रहे या जॉर्जिनियो छोड़ रहे, आई माइट एक्चुअली बी टेम्प्टेड विद दैट. लेकिन हमें चाहिए, हमें अभी 11 को अपग्रेड करना है. आई डोंट थिंक विल स्पेंड और गेट समवन ऑन लोन इमरजेंसी में, क्योंकि जकारिया इंजर्ड है, लेकिन 1 महीने के लिए इंजर्ड है, बस आएंगे, कम बैक, ही कम बैक. राबियो लेफ्ट फुटेड डीएम इज ऑलवेज गुड. अच्छा था उनका वर्ल्ड कप, लेकिन अगेन राबियो इन द प्रीमियर लीग, डू आई सी हिम अपग्रेडिंग? नॉट रियली. ओके, प्लेयर आफ्टर मेसी एंड रोनाल्डो फॉर 3, लेवा और नेमार और ज़्लाटान. मेसी और रोनाल्डो के बाद में भाई कोई नहीं. आयन रॉबिन, मिस्टर पेंटर. सॉरी ब्रो, आई नो आप करंट पूछ रहे हो, लेकिन मैं ऑल टाइम बोल रहा हूँ. बट कोई नहीं, जो मेरे फेवरेट है, मतलब इन टर्म्स ऑफ काका रॉबिन. बट करेंटली सच में बोलूँ तो आई थिंक राइट नाउ जो रहा इन द लास्ट से 10 ईयर्स और 15 ईयर्स, इफ आप जोड़ो ना, मैं कहीं ना कहीं बोलता हूँ द नेमार प्रॉब्ली जस्ट अबाउट इज अबव लेवेंडोव्स्की. अगर लास्ट 15 साल के आप देखो तो करंट में, एकदम करंट में लेवेंडोव्स्की हैज टू बी दैट गाय यार, एब्सोल्युटली. गटेड ऑन केन स्पर्स एक्सटेंशन, आई वांटेड हिम. भाई हो गया क्या? ऑफिशियल तो नहीं हुआ है. आई थिंक ही वाज जस्ट थिंकिंग, ही वाज ज्यादा, मतलब ही वाज होपिंग कि यार हो जाए. मतलब अगेन मैं सरप्राइज्ड हूं दैट ही इज डूइंग दैट. बट पिक्चर अभी बाकी है हरी, सो होल्ड ऑन एब्सोल्युटली. But let's see. Midfield may be. I think the fact is you're getting Conrad Limer in the summer is interesting buy-in, because Gravenberg is being sold as per reports वो available है. लेकिन लोन पर क्यों नहीं अवेलेबल कर रहे यार ग्रावेनबर्ग को? पता नहीं. कोई नहीं, अब देखते हैं. ओके, दोज 5 players are these जो नाखुश है. Fair enough. Let's see what happens with them. Would you take Laporte as Koulibaly replacement in summer? Not now, Darren, honestly, because जितना I know बहुत कम देखा है बार्डेशिले के. But the fact is, I think I can see बार्डेशिले being a starter. बहुत young है, और I think Laporte injury prone भी है थोड़ा सा. बार्डेशिले भी I know उनका भी रिकॉर्ड था, लेकिन I think we should give him time. Plus
याद रखिए वी हैव अ लेवाई कॉलविल जो ही इज कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी इन ब्राइटन और होपफुली समर में आ जाए वापस। तो आई थिंक आई एम ओके विद दैट। वेस्ली फोफाना हम एक्सटेंड करें तियागो सिल्वा, सो तियागो सिल्वा इज एक्सपीरियंस गाई। आपके पास है वेस्ली फोफाना और बारडियाशिले में से एक जन खेलेगा अलॉन्ग विद तियागो सिल्वा मोस्ट ऑफ द बिग मैचेस। द नॉट सो बिग मैचेस यू कैन हैव बेसिकली बारडियाशिले और फोफाना स्टार्टिंग, मे बी चालोबा कमिंग इन। चालोबा अभी भी रखना चाहूंगा इन द स्क्वाड। तो आई थिंक इट्स इनफ। अभी इंजरीज है तो हमें लग रहा है इतना, इसका तो पता नहीं भाई, लेकिन वो ये इतने सारे अटैकर्स के नहीं कर सकते। डेरेन आपने शायद मिस किया, हम लास्ट टू आउट ऑफ थ्री टीम्स वी डिस्कस्ड चेल्सी स्क्वाड इन टोटलिटी। हमने डिस्कस किया हुआ द प्लेयर्स टू बी सोल्ड नॉट हुआ टू बी बॉट एटसेट्रा, और जो लोग बाई किया हम कैसे फिट करेंगे सब चीज। जूट टू लिवरपूल हमने बात किया रूपेश, अगेन बिगनिंग ऑफ द स्ट्रीम में डू चेक आउट दैट एब्सोल्युटली। Neves is actually a good shot क्योंकि Neves is more Premier League proven than either of the other names. Absolutely, Darren मैं agree करता हूँ उससे। लेकिन again, does he elevate us really? मतलब that level नहीं, लेकिन I would still want him right now. कोई नहीं। भाई यूरोपा लीग अभी टाइम है, आज का रात का हमने प्रेडिक्शन दिया है श्लोक। आई फील दैट दे विल गो इनटू द सेमीज, दैट इज बोथ रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना आई फील। लेकिन यूरोपा लीग, चैंपियंस लीग भाई वॉच दिस स्पेस, नेक्स्ट 2 हफ्तों में चेक करना। इसलिए मैं बोलता हूँ अगेन एवरीवन इन द हाउस, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, एब्सोल्युटली सब्सक्राइब भी करना। और रिमेंबर इट्स ऑलवेज अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी। लेकिन भाई अगेन रियल मैड्रिड फैंस ऑल द बेस्ट फॉर द मैड्रिड डर्बी कल है। और कहीं ना कहीं आई नो दैट लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, बट कोई नहीं यार, रियल मैड्रिड आर कमिंग बैक आफ्टर बेसिकली अब थोड़ा सा बुरा रन यू कैन से। एल क्लासिको था एंड ऑफ कोर्स विलारियल के साथ फर्स्ट हाफ था, लेकिन अगेन कमिंग बैक, विनिंग दैट विलारियल गेम इन द कोपा डेल रे एज वेल एज जो जीता है बिलबाओ के साथ, इट्स गुड। आई थिंक गुड वाइब्स एब्सोल्युटली। रियल मैड्रिड में इतना इश्यूज नहीं है जितना दिख रहे, बट सर्टेनली देयर आर इश्यूज, हमने डिस्कस किया बहुत इन बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रीम राइट। ट्रांसफर्स में आई थिंक यू आर गुड। एंड्रिक को ले लिया भाई, अब तो कम ऑन। आई थिंक यू आर गुड एज मच एज कार्वाहाल इंजर्ड है भाई, नाचो डज अ जॉब फॉर यू। आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट फॉर्म, वैल्वर्डे फॉर्म में नहीं है, बहुत लोग फॉर्म नहीं, हम डिस्कस किए थे। लेकिन बार्सिलोना पर मतलब आई थिंक यू आर ऑन अ गुड रन। सोसिएडाड बहुत अच्छा फॉर्म है, एटलेटिको मैड्रिड मिक्स फॉर्म है, लेकिन सोसिएडाड का अच्छा फॉर्म है, तो बार्सिलोना को ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। बट उनका रिकॉर्ड अच्छा उनके अगेंस्ट, प्लस सोसिएडाड के बहुत इंजरी, सो आई एम होपिंग दैट वी गेट टू सी अनदर एल क्लासिको इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। क्या बोलते हो आप लोग? बट एनीवे, हाँ मैंने देखा यार। मैंने देखा बट लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट। पैसा बोलता है यार गौरव, देखते हैं क्या होता है। बट ये तनिष्क भाई, लेट्स बी ऑनेस्ट, आई थिंक ही इज लीविंग ब्रो। मे बी मैं बहुत न्यूज देख रहा हूँ तनिष्क, आपके मैसेज भी देख रहा हूँ, लेकिन मैं डेफिनेटली देख रहा हूँ ही इज मूविंग, वहाँ एक कोई ना कोई क्लब में तो जाएगा। जुबीमेंडी नहीं, नहीं 60 मिलियन नहीं, आई वुड नॉट, एज मच एज ही इज ब्रिलियंट, बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन वो ये प्रीमियर लीग प्रूवन के लिए आई वुड गिव दैट मच। यस आप बोल रहे हो देन व्हाई एंजो, क्योंकि एंजो को मैंने देखा है सूटिंग टू डिफरेंट काइंड ऑफ टीम्स, जुबीमेंडी को डिफरेंट काइंड ऑफ टीम्स में मैंने अभी तक नहीं देखा, तो जूरी इज आउट। तो इतना मैं बोलता हूँ, और अगर हमने कोई साइनिंग नहीं की थी और देन वी वुड हैव गॉन फॉर जुबीमेंडी, फेयर एनफ, लेकिन ऑलरेडी हमने इतना स्पेंड कर लिया है। मैं आई नो बहुत ऐसे ही हंसी मजाक में बोल रहा था टेक द बैन एंड वी आर केयरफ्री, आई डोंट केयर, बट ऑनेस्टली आई वुड नॉट लाइक टू हैव द बैन, क्योंकि हमें पता है सब ट्रांसफर्स वर्क नहीं करेंगे कहीं ना कहीं। सेम चीज बारसा वर काइंड ऑफ ऑन द एज राइट विद द लीवर्स, यू ऑल नो दैट। लेकिन वही है, मतलब देखते हैं बिगर क्लब्स कम भाई, लॉट ऑफ चेंजेस हैपनिंग यार, लॉट ऑफ चेंजेस हैपनिंग एट लिवरपूल हरी, तो यू नेवर नो, अभी ट्रांजिशन सीजन है लिवरपूल के लिए, चेल्सी के लिए, आई थिंक लॉट ऑफ क्लब्स है जहां पर ट्रांजिशन सीजन चल रहा है। आई थिंक लेट्स सी, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, देखते हैं व्हाट हैपेंस विद क्लॉप, व्हाट हैपेंस विद लॉट ऑफ अदर मेंबर्स। बट यहाँ पर भी रेक थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग भाई, सब लोग यहाँ पर चैंपियंस लीग, यूरोपा लीग, सब चीज हम कवर करेंगे। हिट दैट लाइक बटन, हिट दैट सब्सक्राइब बटन, होपफुली हम 7K के पास हो जाए। मैं देख रहा हूँ कितने हो भाई हमें सब्सक्राइबर्स, एंड यस यू कैन चेक आउट हमारे प्लेलिस्ट फॉर पीपल और न्यू वॉचर्स। भाई 400 लाइक्स हो जाते हैं वीडियो में तो मस्त होगा। अगेन डू चेक आउट हमारे पैनल के चैनल्स, एब्सोल्युटली बहुत सारा हम करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट। चेक आउट आवर शॉर्ट्स एज वेल बाय द वे। यहाँ पर भाई 6900 तो कर लो अभी भाई, we are just 10 subscribers away from 6900, come on, 6.9 right away कर दो, और hopefully 7K भी हो जाए। That is the target for January भाई, everyone let's get to 7K in the next 5 days, but hopefully 6.9K tonight with all your help, absolutely। और remember if you have some feedback, always open, आप कैसे शेयर कर सकते हो feedback, चेकआउट डिस्क्रिप्शन, वहां पर हमेशा रहता है मेरा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, सो यू कैन फाइंड मी एक्टिव ऑन इंस्टा, 2 आईडीज है इंस्टा के फॉर बोथ दोस चैनल्स, जो दोनों चैनल्स में आई होप यू हैव सब्सक्राइब बाय द वे। और
we are also active on Twitter, so definitely go with that. But पता नहीं है डेरिन, क्योंकि लैम्पार्ड सैक हो गया ना, दैट माइट बी द रीजन, तो उसको लगा कि नहीं भाई, एवर्टन टर्मोइल में है, स्पर्स थोड़े सेटल्ड है, आई कैन स्टिल काइंड ऑफ टॉक माय वे इन. That's what I'm assuming. Or Spurs are better than Everton. Let's be honest. As much as Spurs को हम banter करते हैं. But anyway, कोई नहीं. We'll come back to it. But कोई नहीं यार. बिल्कुल बिल्कुल. अगेन रिक, यहाँ पर वापस से बोलता हूँ, आई एम अ चेल्सी फैन, आई एम अ मिलान फैन, बट आई कवर कंटेंट फॉर द टॉप 5 लीग्स. आप देख सकते हो, एंड दिस इज समथिंग दैट इज ऑलवेज हैपन. हाँ, थोड़ा सा वर्ल्ड कप ईयर था, तो डेफिनेटली इट हैज बीन मोर हेक्टिक, सो मैं थोड़ा सा कम किया हूँ कंपेयर टू अदर मंथ्स, लेकिन हमेशा मैं करता हूँ, बीट अदर टूर्नामेंट्स एज वेल. तो आप चेक कर सकते हो टॉप 5 लीग से कंटेंट एज वेल एज अ लॉट ऑफ अदर क्रेजी स्टफ. चलो भाई, होपफुली एक्टिव है, तो लेट्स सी इफ वी गेट मोर न्यूज टुमारो. बिग अप टू एवरीवन जॉइनिंग द स्ट्रीम. Remember, it's always a fan channel for all to see, and love you all. See you soon. Hit that like button, and all the best to all the people who are supporting Barcelona, Real Sociedad, Real Madrid, या Atletico Madrid. देखते हैं at the end of the day, और of course Manchester United भी है यार tonight. So all the best for them, and of course do subscribe. See you. Bye.